So let's not bother, right? जो fact है हम उसकी बात करेंगे with real life examples. ठीक है? Yeah, obviously yes. Now everyone talks about this. Everyone, सब बोलते हैं ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा. Nobody talks about these three, and definitely nobody talks about this. What is happening right now? अभी क्या हो रहा है? मुझे वो नॉर्मल जो बातें होती है वो नहीं करनी है. ठीक है? Yes. Please guys, okay, whatever questions you have, I will be taking all the questions at the end of the day. ठीक है? Which is like what, hardly 1.5 hour. मैं सब उसमें कवर करूंगा. ये कोविड-19 क्या होगा, ये सब मैं फालतू बात नहीं करने वाला हूँ. समथिंग which is already available on internet. No, please don't come to us, which is already there on internet, right? I'm going to analyze it a little, right? कि exactly future jobs पे क्या होगा, कौन से इंडस्ट्रीज आ रहे हैं अभी मार्केट में. आप देखोगे ना तो कुछ क्लैरिटी नहीं है. हमने उस पर प्रॉपर एनालिसिस करके एक विद फैक्ट्स, right, how things have changed in last 3 months, वो प्रॉपर निकाला है, and which I'll be discussing and what you should do, right? That is important, right? अरे मैं बता दूंगा अरे बहुत अच्छा चल रहा है यूएस के अंदर ये वाला सेक्टर, अरे जब तुम्हें उसका फायदा नहीं होने वाला तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिस्कशन, राइट? सो माय पॉइंट विल बी व्हाट यू शुड डू. Right? I'm expecting all these people must be either final year students or second year students or final year, एक साल हो गया होगा वो. This is the audience. So I'm going to talk exactly on that. ठीक है? Yeah, nobody is talking on this. सब हो गया ऑनलाइन, बट उसका इम्पैक्ट क्या है, आगे क्या होने वाला है? अरे IIM अहमदाबाद का पूरा कोर्स अभी ऑनलाइन चल रहा है, क्या इम्पैक्ट होने वाला उसका, राइट? प्लीज, वो चल रहा है वो सबको पता है, राइट? व्हाट इज हैपनिंग वो एवरीबडी नोज, बट व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑफ दिस नाउ, क्या होने वाला है? ये प्रॉपर एनालिसिस. अच्छा, एवरीबडी इज टॉकिंग ऑनलाइन का ये नुकसान है, अरे हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं बोल रहा, कभी फायदे की भी बात कर लो यार. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ. So, एक second है guys. Here we go. Yeah. Cat 20, Cat 21, right? ये एकदम एंड में हम बात करेंगे. जिसको करना करो, जिसको नहीं करना वो मत करो. My job will be to inform you. It will not be to push you. Number one, it will not be to influence your decision. No, मैं आपको inform कर दूंगा. That's it. Moral of the story. ठीक है? And that is why, see, if you see information जो आपको नॉर्मल भी इंटरनेट पे मिल जाएगी, वो मैं लास्ट में बात करूंगा, हार्डली 7-8 मिनट्स. और समथिंग व्हिच इज नॉट द एनालिटिकल थिंग व्हिच इज नॉट अवेलेबल ऑन इंटरनेट, आई एम गोइंग टू टॉक टू यू गाइस. सो लेट अस स्टार्ट. हियर वी गो. यस, लेट्स सी. नाउ आप बोलोगे ना सर आपने बात किया था इसका, राइट? हमने बात इसका किया था, राइट? से दिस नाउ. Right. So what we were supposed to discuss was this final year exam, Supreme Court, और मैं बात कर रहा हूँ आप फाइनल ईयर के बाद में क्या क्या कर सकते हो, right? Both are interlinked. Let's understand. Let's go step by steps. Here we go. What do you do after final year? क्या करते हो आप एग्जाम के बाद में, whether it is engineering, whether it is arts, whether it is commerce, right? Guys, I'm not going to take much time on this nonsense. ये already आपको पता होगा. Just a second, huh? Just a second, guys. There's a little issue. I'll sort it out. Okay, just hold on. I'll just sort it out, guys. Don't worry. Just give me a second. Okay, here we go. Yes, here we go. Don't worry. Yeah. Let's see now. Just still going on. Just hold on. Give me a second. I know it. I know if it takes more than if I take more than 5 minutes, people should run away. So it's happening for the first time. Just a second. Yep, here we go. It looks perfect now. ठीक है. What are the options after final year? What do people normally do? ठीक है, ये सब पता है. या तो आप पढ़ाई करोगे आगे, whether it is MCOM, whether it is MBA, whether it is PhD, ऐसा कुछ तो करोगे obviously, या फिर शादी करोगे, या जॉब करोगे, या फिर enjoy. मतलब ठीक है, 2 साल enjoy करोगे, बाद में देखेंगे.
Normal, you know this, right? What are the options you have got, right? Now, in further studies, there are so many other options you have got. You can go for MBA. You can study for IBPS or banking exam, other banking exam, or you do MCOM, right? Or engineering students can go for MTech. या यूएस में जाके वो लोग कुछ तो एमएस करेंगे, दैट्स इजी, उसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। तुम्हें क्यों बात कर रहा हूँ यार, व्हेन दिस इज नॉट द एजेंडा। द बिगेस्ट पॉइंट इज गाइस, I'll tell you, people who go for MBA, people who have got capacity to pay for that MBA coaching and MBA colleges is a small number, right? There is a big crowd which goes for this immediately after final year. There's a big crowd, almost more than 60 to 70% of the crowd go for job. तो बोले सर आप ये क्यों बात कर रहे हो? Guys, here we go. Right, your Supreme Court decision is based on this. Nobody's talking on that. So obviously, see, I'll tell you now. Yeah, it's the same issue which I'm having now. One second. Now, why is it happening? Let's see. One second. Yeah. Okay, this is okay. Yeah, here we go. Yeah. No, yeah, it might happen, but yes, I have to accept it right now. I cannot solve the whole thing. What is happening? क्यों ये डिसीजन लगा निकाला कि यार फाइनल ईयर का एग्जाम लेना कंपलसरी है सुप्रीम कोर्ट ने? आई हैव बीन टॉकिंग फॉर लास्ट 4 months दैट दिस इज, दे कैन नॉट कंडक्ट दिस एग्जाम, they should not conduct. You know, I have been saying that it is only 0.1% chances, only 0.1% chances they'll conduct the exam, and it is happening right now. मैं खुद ही बोल रहा हूँ, all the things which I've said in last 4 months have been absolutely correct, other than this. And I'm blunt in saying this also. I'm extremely blunt in saying this, right? That it is happening now, right? It is happening. क्यों हो रहा है? So one is obviously political. One is obviously political reasons. I don't want to get into political, but क्यों majority of the students go for job? आप खुद सोचो, सब जॉब के लिए जाते हैं, ऑलरेडी जॉब्स की बजी पड़ी है, there are no jobs, people are losing their jobs. So just imagine if TY exams doesn't happen, if they don't happen, if they come out with a ruling कि नहीं चलो एग्जाम नहीं लेना है, ठीक है, एग्जाम नहीं लिया इन्होंने, तो बच्चे तो पास हो जाएंगे, and this would have happened around 3 months back, just like it happened for first year and second year students. So I'm talking of almost more than 15-20 lakh people. शायद ये भी मैं कम नंबर बोल रहा हूँ, 15-20 lakh people will be out in the market with their final year result. Yes, that result will not be with exam, but it will be कुछ तो result होगा ना, 5 semester, 6 semester, 7 semester का combination में. They will have a degree in their hand, and the first thing they'll do is find a job. Where are the jobs? So look at, see, government is also thinking, whether it is right or wrong, I wouldn't bother. What is important is this is how they are thinking. This is what, see, I had a word on this with someone in the HRD ministry. So obviously I cannot name the person here right now, obviously not, but this is the fact. This is a fact. वो बोल रहे कि यार सर 15 लाख लोग, if they are out in the market, if they are out in the market, फाइनल ईयर तो है नहीं, अब जॉब चाहिए, ट्रस्ट मी, एमबीए करने वाले लोग भी कम होंगे, कुछ भी पैसा डालने वाले लोग कम होंगे, because the number of people is reduced, because the money in people's hand is reduced. So they would like to get some kind of job. Where are the jobs, sir? So if these people are out in the market searching for job, there is another issue they'll be facing, right? Everybody knows there are no jobs. Yes, jobs is an issue. But what is the problem they will face? They will hit government. For no reason, they'll hit government. कि अरे जॉब नहीं है, अरे हम ग्रेजुएट हो गए, जॉब नहीं है, अब हम क्या करें? बोले सर हमको वैसे भी सुनना पड़ेगा. So what is the best way? It's just everybody is suffering. So let at least these 15-18 lakh people not come in the market for jobs. Let them think about final year exam कब होगा, हमारी डिग्री कब होगी. I hope you understand the real reason. Why is it happening? That is why, whether it is Supreme Court, whether it is government, obviously there are political reasons. That is why they've come out with this thing कि नहीं अभी एग्जाम लेना ही है. Now next point, ठीक है, कैसे करेंगे एग्जाम?
What is the process? Just imagine. See, I'm discussing all these things. When there were 1,000 cases coming on a daily basis, COVID-19 is what I'm talking, right? तब ये लॉकडाउन था, वो लॉकडाउन था, ट्रेन नहीं चल सकती, बस नहीं चल सकती, आप ये नहीं कर सकते, सब था. And when 70,000 cases are coming, वो मेट्रो चल सकती है, they'll open this. It's quite odd, ना? You when you look at it in retrospect after some time, 2 साल बाद, 3 साल बाद में देखोगे ना, facts and figures के साथ में, जब 1,000 cases आ रहे थे, तो आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते थे, पुलिस डंडे मार रही थी, आप घर से बाहर निकल सकते हो. जब 70,000 cases आ रहे तो आप सब कर सकते हो. Amazing, ना? So why is it happening? Nobody knows. They don't know what they're doing. Nobody knows. वो चल रहा है जो भगवान भरोसे, because they are putting in all efforts to curb the situation. नहीं हो रहा है. अब नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है, क्या करें, राइट? एंड लॉकडाउन का इतना प्रेशर हो गया है ना कि पीपल आर सेइंग भाई जो है मरने दो, हमको चालू करके दो, अभी बिजनेस तो चलाना है, वरना भूखे मर जाएंगे. सो दे आर स्टार्टिंग थिंग्स. So many cases coming. I hope you understand. I'm not discussing about the mistake. I'm telling you, look at the decisions. There's no right or wrong decisions. Right or wrong is always in retrospect. चीजें अच्छी होगी तो आप 4 साल बाद में बोलोगे बहुत अच्छा काम किया था. वो चीजें अच्छी नहीं हुई तो 4 साल बाद में you will say, अरे क्या बकवास डिसीजन लिया था. Anybody have any guts to say right now if this is the wrong decision you are taking? Because nobody knows. Right? So अभी एग्जाम देंगे कैसे? ये सब, there is a reason I'm saying you this. When 70,000 cases are coming almost on a daily basis, एग्जाम लेंगे कैसे? कॉलेज ओपन हो, मतलब कॉलेज में अभी तो लोग आ रहे हैं, बच्चे तो नहीं आ रहे हैं. Will parents send their kids for exam? अभी फाइनल ईयर एग्जाम है तो भेजना पड़ेगा, मतलब आगे का सवाल है, बट इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. इट इज गोइंग टू बी वेरी नीट. आईआईटी का जो एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, देखो ना क्या चल रहा है, उसके ऊपर बवाल मचा हुआ है. मतलब आईआईटी एंट्रेंस पे आप बवाल मचा रहे हो और ये फाइनल ईयर एग्जाम बच्चों का रोक के रखे हो, क्यों? So I hope you understand this whole thing. 15 minutes gone. That is what I wanted to talk on. There's a reason they are doing it, which means September 30. September 30 तो लास्ट डेट था एग्जाम कंडक्ट होके खत्म होने का. Now they said you can extend it, and I guarantee it will keep getting extended. It will keep getting extended. और अगर कंडक्ट किया बिना तो इतने बुरे हाल होंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है. This I am telling you bluntly. So you be prepared कि एग्जाम होगा 30th September होगा, 30th October होगा, 30th November होगा. Nobody knows. But if these cases keep rising like this, they will not be able to conduct the exam. Which means my analysis, it will keep getting extended. अब वो मेरा सही भी हो रहा है, मैं तब से बोल रहा हूँ, या तो एग्जाम ही नहीं होगा, ये करते जाएंगे एक्सटेंड इसको. फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जब लॉकडाउन हुआ था तब मैंने बोल दिया था कि एग्जाम नहीं हो सकता गाइस. सो डोंट वरी. नंबर 1 पॉइंट, डोंट वरी. आई थिंक मैं एक एक इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहा हूँ, which is analytical. कब रिजल्ट निकालेंगे यार? हाँ, कॉपियां चेक हो जाएगी क्या ऐसी 10 दिन में, 15 दिन में? हाँ, कैसे करेंगे? राइट? ट्रस्ट मी, योर रिजल्ट, मतलब यू ऑल दोस पीपल हु आर इन फाइनल ईयर, बी प्रिपेयर्ड. शायद आपका एग्जाम भी मार्च 2021 में ये साल के जो बच्चे होंगे ना, शायद उनके साथ जाके होगा. सीरियसली, बी प्रिपेयर्ड. आई एम जस्ट टेलिंग यू एवरीथिंग व्हाट यू शुड डू. ठीक है? नेक्स्ट, कैन दे फेल यू? अभी ये टाइम पे थिंक अबाउट इट. फेल कर सकते हैं क्या तुमको? सोच के बताना आप मुझे. मतलब तुमको फेल करेंगे या फिर वो सप्लीमेंट्री, इसको बोलते हैं केटी लगाएंगे तुमको. कैन दे डू दैट? फिर केटी का एग्जाम कब लेंगे? सीरियसली, उतना कैपेसिटी है क्या उनमें? सो अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग सबको पास कर देंगे 50-50%, 50-60%, जो भी मार्क्स आएंगे दे देंगे, पास हो जाओ भाई, जाओ अभी हमारे साथ से. पर कब? जब मार्केट इंप्रूव होगा. तो पहले तो एग्जाम लेट लेंगे, उसके बाद में रिजल्ट तो अनबिलीवेबली लेट निकालेंगे. अनबिलीवेबली. I hope you understand why I'm saying this. There's proper logical reason behind it, right? So unbelievably late, बहुत late निकलेगा रिजल्ट. Next, what you should do again, our perspective, please, जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया. अभी क्या, every month you cannot study the same subject again and again, right? And just before, they cannot do it like this कि they will conduct exam, आज बोला और कल तुमको एग्जाम आना. I hope you understand. They have to give a timetable. They have to intimate the colleges, क्योंकि कॉलेज में होगा ना एग्जाम. Colleges to make preparation, benches लगाना, कैसे कौन सा फैकल्टी आके वो इन्विजिलेटर बनेगा. So many things, which means at least 10 to 15 days का आपको टाइम पीरियड मिलेगा.
अब आप बोलोगे सर 10-15 दिन में थोड़ी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। भाई प्लीज यार, जो पढ़ाई होनी थी हो गई है। अब जो ये as soon as you get proper notification, yes, एग्जाम फ्रॉम 1 नवंबर, तब पढ़ना चालू करो। उसके पहले मत दिमाग लगाओ। यू आर आप वो एंजाइटी इश्यूज हो रहे हो और कुछ नहीं है। I hope you understand this, right? That's what we are suggesting everyone. Please, मतलब आप 6 महीने से क्या कर रहे हो यार? वही कर रहे हो ना? Why waste your time? That's it. Simple. Next. Extremely important. I really want to talk. Nobody's talking. Time is money. नहीं, मेरे को वो बात नहीं करना है. Now, why I really want to talk on this now? जी, let's understand one by one. समझो आपने 6 months. What have you been doing? Right. Thank you, Rishikesh. Now, lot of students. See, आप जिसको जो बोलना है बिंदास, आप मुझे चैट में लिखो। आपके क्वेश्चंस अगर होंगे तो चैट में लिखो। मैं शायद लास्ट में लूंगा या बाद में लूंगा। सुजल से स्लोली. ओके, I'll try that. Okay, fair enough. No, I'll try and speak a little slowly. But see, मैं फ्लो में जाना चाहता हूँ. Just imagine from my perspective, मेरे सामने कोई नहीं बैठा है. मैं लैपटॉप के सामने बड़बड़ कर रहा हूँ. अच्छा, डोर क्लोज, अदरवाइज माई वेब सीरीज देखी. गुड. Anyway, so you know why feel come कि ये क्या कर क्या नहीं यार, किससे बात कर रहे हो. But I am used to teaching like that now, so yeah, it's no issues. Now why I want to talk on time and money is कि यार, if you have money, there is a big thing. If you have money, obviously, if there's a big if here. अगर आपके पास में 2 लाख रुपए हैं, अगर आपके पास में 5,000 रुपीज है, अगर आपके पास में 10,000 रुपीज है, अगर है तो मैं तभी बात कर रहा हूं, ठीक है. अगर है, you want to go for MCOM, you want to go for MBA, you want to prepare for IBPS, you want to learn dancing or singing, जो भी करना है करो ना. This is the time यार. फ्री बैठ के सर हम रिजल्ट का सोचेंगे, रिजल्ट के बाद में मैं सोचूंगा मुझे लाइफ में क्या करना. व्हाट आर यू थिंकिंग गाइस? यू आर वेस्टिंग, यू हैव ऑलरेडी वेस्टेड 6 months. ऑल दोस पीपल, गिव मी वन रीजन कि आपको क्या सोचना है यार. राइट? अरे द ओनली थिंग यू शुड बी वरीड अबाउट, इफ यू हैव नो मनी आई कांट हेल्प यू. नोबडी कैन हेल्प यू. ठीक है भाई, नहीं है सर, नहीं है मेरे पास 2,000 रुपया भी नहीं है. मैं फिर ठीक है यार, देन तो इफ यू डोंट हैव मनी इट्स परफेक्टली ऑल राइट यार, कोई कुछ नहीं कर सकता. But if I'm saying, if you can afford 5,000 rupees, if you can afford, let's say 5 lakh rupees, now different people with different capacity. Yes, there is someone who's saying learn other languages like French or Spanish and then do what? I don't know. Okay, just an example. It's your choice. कोई दूसरा language सीखो यार. Seriously, but make sure you do something. Number one. Now, obviously, if you have money, now why? क्या उसका फर्क होगा वो मैं बताता हूँ यार. सुनो ना, ध्यान से सुनो. ये टाइम एंड मनी यू विल अंडरस्टैंड नाउ. इट्स अबाउट 10,000 रुपीज, इट्स अबाउट 20,000 रुपीज. मैं अभी 5 लाख सिर्फ एग्जाम्पल लिखा, सो दैट अगर वैसा कोई कोर्स हो तो वो करो. अच्छी अंडरस्टैंड, इफ यू हैव दिस मनी एंड इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इट राइट नाउ. देखो मैं कैसे इंटरलिंक करूंगा. 10,000 का कौन सा इंटरेस्ट मिलेगा तुमको यार? मतलब बहुत इंटरेस्ट मिलने वाला है क्या? इस पे तुम्हारी जिंदगी चलने वाली है तो मत, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ. If you don't have money, yes, please don't do anything. मैं clearly बोल रहा हूँ. But if you have some money, it might be 2,000, it could be 5,000. I don't know. कुछ करो यार. Now I'll tell you why, how it is happening, guys. This is interesting, and I can give you. I'm Ahmedabad का example. I can give you Big Chandani का example. I can give you Reliance, Tata, सबको मालूम है नाम, तो मैं वो example देना नहीं चाहता. I'll give you our own example. Now this is going to be a shocker for even my office. Huh? It's going to be a shocker for even my office. I know that. मेरे ऑफिस के लोगों के लिए भी शॉकर होगा कि I had decent money. In my office we had decent money. ऐसा मतलब इतना पैसे का कमी नहीं था कभी भी. So it was about, ये अच्छे से सुनो है. This is about our industry. You will understand a little about our industry right now. That is what is applicable on you also. It was about, जैसे ही लॉकडाउन हुआ ना, क्या करें? 70% of the coaching classes, एजुकेटर सब, पता नहीं है, देखेंगे 2 महीने बाद में, जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा 3 महीने बाद में, तब की तब सोचेंगे दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग. एंड नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस. या आपके साथ भी वही होने वाला है, एग्जैक्टली सेम. और आप मतलब क्या, सबके साथ में, राइट? सो अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल. 70% कोचिंग इंडस्ट्री सेम.
सब खत्म, अभी सब खत्म हो गया. I had few options. Now, when I say I means my office, my whole team, we had few options. What were the options? देखते हैं. पैसा है बैंक में, मेरे बैंक में पैसा पड़ा है मेरे पास, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या होगा यार, देखते हैं. लेट्स वेट एंड वॉच. देखते हैं क्या होगा. लॉकडाउन 2 महीने बाद में देखेंगे, 3 महीने बाद में देखेंगे, हो जाएगा 3 महीने में सब इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है. सो वी आइदर थिंक लाइक दैट, विच 70% ऑफ द इंडस्ट्री थॉट लाइक दैट, और पैसा है ना, थोड़ा बहुत तो है ही ना पैसा, ठीक है, एंड खाना खाने को मिल जाता है, इतना प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में. so, क्या करूं? I'll tell you honestly, this is what Zoom try करो. Because even if lockdown goes for 1 month or 2 months, I don't know what's going to happen. Let's prepare. Change. क्या चल रहा मार्केट में, right? Guys, link it to, see, I'm a normal human being in front of you, right? मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, प्लीज, राइट? मुकेश अंबानी को खरीदने गया था, पर उसने बोला नहीं नहीं सर, मैं आपको अभी नहीं बेचूंगा, वो 1 साल बाद में बेचूंगा, तो हम देखेंगे फिर, ठीक है. जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यार, व्हाट्स द बिग डील, राइट? एंड अंडरस्टैंड दिस. Zoom का आईडी खरीद लिया, कुछ पैसा, 1400-1500 rupees, like monthly cost per ID. Then we increase this to 3 IDs. काम चलना चलो, which is nothing. But there was some investment. Yes, obviously tablet खरीदना था, laptop सबके पास होना चाहिए, तो some investment was required. But I had that kind of money, which is let's say hardly 50K. 50,000 is again a small, but for me it's a small amount, but it's okay. But for you 5,000 might be a small amount. The point is, we invested that money. We invested that money. हाँ यार, ये कोई तो बोल रहा है कि instead of learning new talent, they are wasting their time on it. I will discuss everything which you are. Guys, keep writing. I will discuss whatever you are saying also. So somebody has written कि Amazon पे टाइम पास कर रहे हैं वगैरह, वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अरे भाई, मैंने भी बहुत कुछ देखा, टाइम पास किया. But does it mean my life will stop? No. I reduced my weight by almost 8-9 kgs, little overweight. That is irrelevant for you guys. Why I'm giving you this example is, some money was invested in business immediately. And it started right now. I think more than 200 students. ये लॉकडाउन के अंदर इतने सारे बच्चों ने एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहे हैं. Wherein 70% of the coaching industry is dead. I officially know that. तो मैं बड़ा आदमी, बहुत बहुत आगे का सोचा गया. What I thought was, what is important, this or this? Obviously, I'm taking it for granted. थोड़ा पैसा है. अगर नहीं है तो यार, साला खाने को पैसा नहीं है तो क्या मैं टेबलेट खरीदूंगा या लैपटॉप खरीदूंगा क्या? वो नहीं है. आई एम नॉट टॉकिंग ऑन दैट. बट इफ यू हैव समबडी इन्वेस्ट इट राइट नाउ, नॉट इन्वेस्ट मतलब जो भी कुछ करना है, वो पैसे का इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है तुम्हें. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई एम हैविंग विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, कि नहीं सब लॉकडाउन ओपन होगा तब देखेंगे, हम बाद में सोचेंगे. अभी अरे ठीक है, बाद में क्या सोचोगे? या तो करना है या नहीं करना. आई एम नॉट सेइंग एमबीए, आई एम नॉट सेइंग कैट, आई एम नॉट सेइंग सीटी, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग. स्पेनिश सीखना है, चलो तुमको सीखना ही था स्पेनिश, तो सीखना. 3,000 रुपए नहीं है क्या तेरे पास? एज सिंपल इज इट गेट्स यार. वो उसका इंटरेस्ट लेके क्या, अब कुछ नहीं होने वाला है. either you are doing it or you are not doing it is more important. Then, and I'm telling you, just imagine 6 months, almost 6 months gone. अब तो मैंने काउंटिंग भी भूल गया, इतना घर पे तो आज तक नहीं बैठा. 6 months क्या कर रहे हो? कितना सीरीज देखोगे? कितना हो गया? मैं अभी वो एवेंजर्स देख देख के हो गया, बहुत हो गया, सब एक जैसा, सब मूवी वो एक जैसा ही लगता है. अभी क्या है, कितना? Come on, yeah, it's over now. So why I'm saying this, as I told you, decide. या तो yes या no, that is more important. If you have got 5,000 rupees, if you have got 500 rupees, इसके बेसिस पे डिसीजन ले लो ना. अरे पेरेंट्स को बुलाओ. हमने कितने पेरेंट्स से मेरे टीम ने बात की है, हम सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं यार कि भाई तुम डिसाइड कर दो. तुम ये सोचो नहीं नहीं हम लॉकडाउन के बाद में सोचेंगे. तो बाद में सोचोगे क्या? ये बोलो ना, पैसा नहीं है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. सी यार, हमको भी सी वी वांटेड टू बाय 2 प्रॉपर्टीज, ठीक है, 2 अलग अलग प्रॉपर्टी खरीदना था कमर्शियल, ठीक है. टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हम रुके और वो एक ही प्रॉपर्टी लिया. मैं मेरे लेवल पे बात कर रहा हूँ, मुकेश अंबानी अपने लेवल पे बात कर रहा था यार. तुम तुम्हारे लेवल पे बात करो. बच्चे हो तो बच्चे के हिसाब से कि नहीं पापा 2,000 रुपया नहीं है क्या, राइट? अच्छा एक सेकेंड, आई एम नॉट आस्किंग यू टू टेक एडमिशन विद अस ओनली.
एंड इट्स अबाउट डिसीजन. जो करना है वो डिसीजन लेके आगे बढ़ो. व्हाई? बिकॉज इफ यू डिले योर डिसीजन बाय 1 year, अच्छे से सुनो, नेक्स्ट ईयर मतलब अब जो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जा रहा है, कंपटीशन फॉर एवरीथिंग विल इंक्रीज. नहीं होगा, तुम खुद सोचो कंपटीशन, क्योंकि ये बच्चे कभी ना कभी तो ग्रेजुएट होंगे, कभी ना कभी तो होने वाले ना ग्रेजुएट. आज नहीं तो कल उनको करना, परसों इनको करना ही है, सबको ग्रेजुएट करना ही है. और जब एकदम से ग्रेजुएट हो जाएंगे 6 महीने बाद में, समझो सिचुएशन नॉर्मल जैसा कुछ तो हुआ. वी आर तो प्रिपेयर्ड, मार्च तक ऐसा ही चलेगा, 100% मार्च तक ऐसा चलने वाला है. सिचुएशन इंप्रूव हुआ तो सब भागेंगे कुछ न कुछ करने को. तुमको ऐसा नहीं लगता कंपटीशन बढ़ेगा? ठीक. See, this is what we did. We started on Zoom immediately. Talk to any of our team members. My team members were extremely good in that. They picked up things. सबने सब पढ़ाना चालू किया and we gained out of that. हमें उसका फायदा हुआ. और जो लोग नहीं कर गए वो चले गए. अब मुझे ये बताओ, नहीं, आई एम गिविंग यू डायरेक्टली माय एग्जांपल, यू कैन टॉक टू मी. यार तुम मुझे बताओ, हमने चालू कर दिया, वी हैव ऑलरेडी गॉट स्टूडेंट्स, विल गेट रिजल्ट. जिस दिन सब कुछ ओपन हुआ, तो ऐसा नहीं है ना कि जैसे एंडेवर करके एक प्लेयर है कैट का, मेरा खुद का कॉम्पिटिटर, मैं क्लियरली नाम बोल रहा हूँ, बॉम्बे से उड़ गया. मुझे ऑफिशियली मालूम है सिर्फ एक सेंटर बचा है. 3 सेंटर ऑफिशियली क्लोज किया हमने, कुछ बंद नहीं किया है. ऑफिशियली क्लोज मतलब बंद, वो लैंडलॉर्ड को दे दिया अपना जगह. Now, I hope you're getting my point. That now when lockdown is over, future में coming back to Mumbai ka market will be difficult for anybody now. But people who are existing, people who have survived, people who have done well will move forward. Now, why I'm saying this? That's what you can do. ये टाइम पे अगर आप डिसीजन लोगे, आगे बढ़ोगे, थोड़ा तुम्हें कंपटीशन कम मिलेगा, थोड़ा नहीं बहुत कम मिलेगा, बट दिस इज क्योंकि लोग सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे. एडवांटेज लो ना उसका यार. दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. टेक एडवांटेज. अभी इसका एडवांटेज है क्योंकि कंपटीशन कम है. दैट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, ये पैसे का इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला जो लेके बैठ, क्या मतलब क्या इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला. इफ यू हैव, ऑब्वियसली आई रियली अंडरस्टैंड. बहुत सारे लोगों को थोड़ा पैसे का इश्यू होगा, तो विच आई अंडरस्टैंड, ट्रस्ट मी. इज नॉट दैट वी डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, सब समझता है यार, बट नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते यार. ठीक है. Yeah, now I'll be taking specific on this because everybody talks on this. मेरे लिए बहुत easy है, पर मुझे इसके बारे में ज्यादा बात करना है. ये अभी तुमको समझ भी गया होगा थोड़ा बहुत, नथिंग से क्या होता है. ठीक है. नाउ वन डिफरेंस विच ऑलरेडी पीपल मस्ट बी नोइंग, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ गाइस. अगेन इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ये फास्ट समझ में आएगा. अदर देन कंपैरिजन ऑफ दिस वर्सेस ऑल, कंपैरिजन ऑफ दिस वर्सेस ऑल. ठीक है. नाउ दिस इज स्टडीज, इट इज अबाउट स्टडीज, राइट. इसमें क्या होता है, सी अगेन सिंपल. सबसे पहले एक एंट्रेंस, जो मैं बाद में बताने वाला हूं, एंट्रेंस जीडी पीआई प्रोसेस है. उसके बाद में आफ्टर दिस द सेकेंड स्टेप इज 2 years of studies. दिस इज 2 years of studies. ये तो तुम पढ़ ही रहे हो एंट्रेंस में, द सब्जेक्ट्स आई विल बी टेलिंग यू लेटर. उसके बाद में 2 साल का स्टडीज एंड देन यू गेट प्लेस्ड. इसके बाद में तुम्हें प्लेसमेंट मिलता है, फिर जॉब मिलता है. व्हाट इज बैंकिंग? ध्यान से सुनो, राइट. बैंकिंग इज स्टेप नंबर 1 एंट्रेंस, वो सेम टेस्ट जीडी पीआई वो सब है, अगेन which I'll be covering later, and then directly placed. ये बीच में कुछ नहीं है, there's nothing in between. So why I'm saying this, so all those people who are thinking of बैंक पे मतलब अगर आपको जॉब करना, पढ़ाई से तंग आ चुके हो कि नहीं सर जिंदगी में बहुत हो गई पढ़ाई, मुश्किल से तो ग्रेजुएशन किया, अब हमको आगे जाने दो लाइफ में, बैंकिंग इज नो इश्यूज. बट लेट मी बी ऑनेस्ट हियर, मैं जो है क्लियरली बोलता हूँ. समटाइम माय टीम डज टेल मी कि सर आप इतना ब्लंटली मत बोला करो. मोस्ट स्टूडेंट्स इन इंडिया आफ्टर ग्रेजुएशन वांट जॉब. सबका थिंकिंग वही होता है. जब ये नहीं मिलता है उनको पढ़ाई करना ही नहीं है, उनको क्या चाहिए, उनको जॉब मिलना चाहिए. वो किसकी तरफ भागते हैं जब ये नहीं मिलता है ढंग से ग्रेजुएशन के बाद में. वो तुमको पता भी है ग्रेजुएशन के बाद में क्या मिलता था. ठीक है, मैं इनफ सेमिनार्स में इनफ टाइम्स मैंने बच्चों को बोला है कि साला कुछ नहीं मिलने वाला तुमको यार,
8,000, 10,000, 12,000, वो भी लॉकडाउन के पहले नॉर्मल ग्रेजुएट. इफ यू आर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, लेट्स से इफ इट्स अ गुड कॉलेज, 4 लाख रुपीस पर ईयर, मतलब 35-40,000 if it's a good engineering college. If it's an average engineering college, 20,000, 25,000. Yeah, no issues, Divyasha. Talk to my team later, don't worry. So let us understand. So what do you get? एक एवरेज जॉब, वो नहीं जमा तो बच्चा किधर भागेगा? उसको जॉब ही करना है, उसको पढ़ना ही नहीं है लाइफ में. मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड, बिग क्राउड, राइट? what will they do? They run to this, क्योंकि at the end of the day उनको जॉब करना है. I hope you understand this now. At the end of the day, what they want to do is the job, right? So where's the competition higher? Where's the competition higher? Banking. Let me be honest, वो तो है. ये साल डेफिनेटली थोड़ा कंपटीशन कम है, क्योंकि वही कंफ्यूजन करना नहीं है. हाँ, वो फलाना ढिमका, बट वैकेंसीज भी थोड़े कम निकले हैं, राइट? आई एम टेलिंग यू ब्लंटली, बैंकिंग में वैकेंसीज भी कम निकले. लेकिन एक दूसरा फायदा, एसबीआई भी है, आईबीपीएस भी है, एलआईसी भी है, सब जगह थोड़े थोड़े वैकेंसीज निकलेंगे. वो ऑप्शन नहीं है उनके पास में. उनको समझ में आ गया गवर्नमेंट में लोग कम है तो उनको हायरिंग करना है, ठीक है? सो विच मींस देयर आर वैकेंसीज, बट थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है. यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम है, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. लेकिन यस, यहाँ पे पैसा भी जाता है भाई, क्योंकि ये पढ़ोगे तो पैसा देना पड़ेगा ना. सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग एंड एमबीए इज दिस. रिमेंबर गाइस, ये तो दोनों जगह, वो एंट्रेंस एग्जाम दोनों जगह, यू कांट कम आउट ऑफ दैट, लाइक एज सिंपल एज इट गेट. नाउ इज द जॉब. मैं अब डायरेक्टली जॉब से कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज पीपल डोंट डू दैट, ठीक है? नथिंग विल ऑटोमेटिकली कम, नथिंग से आपको क्लियर हो जाएगा. जॉब के साथ में क्या? नाउ द सी, अंडरस्टैंड इट, पीपल डोंट गेट दिस, राइट? यहाँ पे दे डेफिनेटली फॉल्टर. लेट्स से आप जॉब चालू करते हो, व्हाट इज द जॉब यू विल गेट? इफ यू आर एन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए गुड कॉलेज, नो इश्यूज. मैं क्लियरली बोलता हूं, प्लीज ले लो, पहले जॉब ले लो, work for 2 years, then go for your MBA, go for your MS or MTech, whatever, right? But if it's normal commerce graduate, arts graduate, what is the job you'll get usually? मतलब आप चाहिए तो chat box में लिखो, but the normal monthly amount which you will get, this is the normal monthly amount, 8,000 to 10,000, until and unless you are from SIGDEM or HR college or some top colleges, but I'm taking the average number, 10,000 मिला. Tell me honestly, is 10,000 enough? Think about it. It's your call at the end of the day. Job चालू करोगे 10,000 में, नहीं चलेगा. 10,000 pocket money is very good. This is year 1. Year 2, what will you get? Increment होगा ना? कर लो. 12,000, 20% increment ले लो यार, और क्या मिलेगा? नहीं चल, 20% नहीं, 40% increment. चल, 14,000. Year 3, you'll get some increment, right? Get that increment. ये अच्छे से सुनो. ईयर 3 इंक्रीमेंट क्या मिलेगा? 25%. नॉर्मली इतना इंक्रीमेंट होता नहीं, और ये टाइम पे तो छोड़ ही दो, ये टाइम पे तो इट इज ऑल डिक्रीमेंट, सो लेट्स नॉट बॉदर अबाउट दैट. यू विल गेट इंक्रीमेंट. कितना इंक्रीमेंट? चलो 18,000 ले लो. ये दीज आर प्रॉपर फिगर्स. यू इफ यू डिसएग्री, यू डिसएग्री. आप जॉब चेंज करोगे थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, 14 का 18 मिल जाएगा, 18 का 22 हो जाएगा. बट जस्ट लुक एट द डिफरेंस जो मैं अभी आपको बताऊंगा. जॉब के बाद में दिस वुड बी व्हाट, 25 के में. ऐसा मस्त जंप हो रहा है. आई वुड लव टू टॉक टू पीपल हु हैव गॉट सम एक्सपीरियंस हियर. ईयर 5 30 के है, मतलब मिल सकता है ना. ईयर 6 35 के, 40 के ले लो यार, मिले. अरे हो सकता है इतना इंक्रीमेंट, बट टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट द नॉर्मल इंक्रीमेंट. इतना होता नहीं है, बट आई एम टेकिंग ऑन द हायर साइड. चलो ले लिया इतना इंक्रीमेंट. 6 years. अभी क्या करें? विच इज बेटर? आप सोच के बोलो, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है अभी इसके बाद में. दिस इज व्हाट हैपेंस आफ्टर द फर्स्ट जॉब इन इंडिया. दैट इज अ प्रॉब्लम विद इंडियन दिस थिंग, क्योंकि ग्रेजुएशन का वैल्यू ऑलमोस्ट गॉन है. दैट आई टॉक अबाउट द इंडस्ट्रीज लिटिल व्हाइल लेटर एंड यू विल अंडरस्टैंड कि क्या हालत कर रखी है इंडस्ट्रीज के, और ग्रेजुएट्स का क्या हालत है. एंड इफ यू डिसएग्री, टेल मी. Yes, there will be few exceptions. वो छोड़ दो, 2% लोगों को शायद अच्छा मिलेगा, कुछ बिजनेस करेंगे, चलेगा. कोई, अरे वो ठेले वाला ज्यादा कमाता भाई, राइट? मैं अगर पानी पूरी वाला हूँ तो मैं ज्यादा कमाऊंगा, तो वो बिजनेस वो कर, वो ज्यादा अच्छा समटाइम्स, आई थिंक. ठीक है. सो हियर
If you clear 6 years, huh? If you clear things, your first salary is PO के बाद में 35,000, राइट? MBA C ग्रेड कॉलेज है, A और B की बात ही नहीं, ड्रीम कॉलेजेस की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, जाने दो, वो तो तुम इसमें डिस्कशन ही नहीं है. Even a C grade college will give you a monthly salary of 35,000. C grade है, मतलब उसमें एडमिशन तुम्हें अभी भी मिल जाएगा, तुम चले जाओ भी. Right? This year they have allowed, right? कि you only, even if you are just a graduate, you will get the MBA. We'll talk about that later. Right now, the comparison is more important. क्या अभी सोच के देखो तुम. Is it over? It's not over. आप ध्यान से सुनो. You're totally right, sir. टाइम के साथ एक्सपीरियंस भी मिलेगा, एक्सपीरियंस से पोजीशन भी थोड़ा चेंज होगा. I'll talk about that. मैं अभी yes. Maybe 4-5 years salary. Correct. So what you're saying is correct. Guys, somebody has written me कि हाँ 4-5 years down the line you will get 30-35K with experience and other thing. मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ first year से 35K. But this is not the end. लोग यहाँ पे बात करके छोड़ देते हैं. हाँ अरे पहले साल से मेरे को अगर 35,000, अच्छा 35,000 C ग्रेड कॉलेज है, थोड़ा एफर्ट डाला, B ग्रेड कॉलेज मिला, योर सैलरी इज इजीली 50,000 रुपीज. थोड़ा सा एफर्ट. और अभी तो लोन ऐसे धड़ाधड़ मिल रहे हैं यार. Now this, it's not the end. The point is not this. You'll say कि सर you wasted 7-8 minutes and आप बोलो ये पॉइंट है ही नहीं. मैं भाई ये नॉर्मल है यार, ये तो तुम समझ जाओगे, ये समझोगे क्या? प्रोफाइल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. तुम खुद सोचो, तुम क्लर्क से चालू करोगे, रिसेप्शनिस्ट से चालू करोगे, अकाउंटेंट से चालू करोगे, ऐसे ही कुछ चालू करोगे ना, तुमको कोई सीनियर मैनेजर तो बनाने वाला नहीं है, कोई भी हो. आई एम नॉट सेइंग जस्ट यू गाइस, राइट? लेट्स सी. नाउ आई वुड लाइक टू एंड इट हियर ओनली बाय मेंशनिंग दिस पॉइंट दैट जस्ट ए नॉर्मल ग्रेजुएट, यू थिंक आप बहुत ऊपर लेवल तक पहुंच पाओगे? कोई भी बच्चा, मैंने कोई भी डिसेंट कंपनी में नहीं देखा है, डिसेंट छोड़ो किसी भी कंपनी में, अनटिल एंड अनलेस यू आर ए बिजनेसमैन. आप अपना बिजनेस चालू करो, कुछ भी छोटा मोटा, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी ऑनेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुछ तो नया आइडिया लेके चालू करो, वो चलेगा. उसमें तो ये सब बकवास है, फिर तो तुम सोचो ही मत, यू विल बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. बट विद दिस प्रोफाइल का बहुत इश्यू होता है, इसमें प्रोफाइल इंप्रूव नहीं होता. यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट जॉब तुम्हें लगेगा सेल्स है, बट विद इन 1 ईयर आपको खुद लगेगा योर एक्चुअल प्रोफाइल इज एनी टाइम बेटर, एनी टाइम बेटर. इंक्रीमेंट इज एनी टाइम बेटर, एनी टाइम, इवन हियर. दैट इज, सी दिस इज द मेन रीजन. प्रोफाइल, क्या काम मिल रहा है, उसके लिए हम बच्चों को बोलते हैं यार कुछ अच्छा करो. होप यू अंडरस्टैंड, इट्स मोर ऑफ प्रोफाइल, राइट? ये कोई सोचता नहीं है. सो नाउ दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक. जॉब और एमबीए वर्सेस बैंकिंग में मेन डिफरेंस ये है, प्रोफाइल. वो आपको समझना है. नथिंग. अभी इस पे तो मुझे बात करनी ही थी, आपको थोड़ा बहुत समझा होगा. मतलब इफ यू डू नथिंग राइट नाउ, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल राइट नाउ, 6 months, let's say, if people have vested, I'm seeing people doing that. वो ठीक है, Amazon Prime देखो, Netflix देखो, वो सब ठीक है, बट यार कुछ तो कर लो यार. Somebody, let's say, who has invested, let's say 5,000 rupees, 10,000 rupees, right? 15,000, धीरे धीरे पैसा दे रहे हैं, और हमने कभी इंस्टॉलमेंट नहीं दिया होगा, अभी हमने इंस्टॉलमेंट दिया ये सब, राइट? बट ठीक है, लेट्स सी. सो those people must have studied something, they must have gained something. Who will have an advantage in coming years? So yeah, nothing से कैसे compare करूं? I hope you're getting my point. How do I compare these things with nothing right now? Now, can I compare job versus nothing? अरे job है क्या, मिल रहा है क्या? I have वो free internship वगैरह बहुत मिल रहा है. अरे तू काम क्या सीख रहे हो? वो free पैसा मिल रहा है क्या? If you are getting some money out of it, please do it. Otherwise, it's all nonsense. So people are sitting idle. अरे कुछ तो करो. Moral of the story. Now, if you have any questions on this, please ask me at the end of the session. Next. Guys, you believe it or not, situation ऐसा आ गया ना, I'll say it, during the course of time, I'll say that we started with almost वही same, यही नंबर से हमने स्टार्ट किया था, और ये नंबर अभी भी है सेमिनार में. वो बड़ी बात है ये समय के हिसाब से. ऑलमोस्ट 45 minutes ओवर, और अगर सारे लोग सुन रहे, मतलब शायद तुम्हें कुछ तो जम रहा होगा, राइट? अदरवाइज आजकल सुनते नहीं है, लीव 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 लीव. इंपॉर्टेंट.
extremely important indeed. जॉब मार्केट, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फ्यूचर जॉब्स। मैं स्पेसिफिक टू द पॉइंट बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है। आप ये 2 स्लाइड्स हैं, कौन से इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे जा रहे हैं और क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, स्पेसिफिक आई एम गोइंग टू टॉक। और आपके जो भी ख्याली पुलाव है प्लीज निकाल दो। दिस इंडस्ट्री इज डेड, प्लीज छोड़ दो। अरे थैंक यू समबडी टोल्ड मी कि दूसरे से इंटरेस्टिंग नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है आपको अलाउ करना चाहिए कि टॉक टू एवरीवन, बट नॉर्मली वी डोंट डू दैट। इट्स ओके, पीपल आर कमेंटिंग, अभी तक तो सब अच्छे कमेंट आए, बट इट्स ओके। दिस इंडस्ट्री इज डेड, प्लीज लीव दिस इंडस्ट्री, ठीक है। प्लीज ट्रैवल एंड टूरिज्म छोड़ दो यार, बहुत ख्याल होते थे मैं इसमें जाऊंगा उसमें जाऊंगा, छोड़ दो। मैग्निफिसेंट इंडस्ट्री, मैग्निफिसेंट, IIMs, all top MBA colleges, they would die to get into this, they would die to get in. What is investment banking? मतलब बेसिकली बड़े लोगों का पैसा किधर डालना चाहिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, ठीक है। मतलब इफ आई एम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, yes Bhavna, what you are saying is correct. Bhavna is telling me pharmacy and insurance are on boom, perfect, yes। मैंने भी कुछ वैसे ही लिखा होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा मैंने, yes I've written that, health and insurance, yeah correct। अरे मेरा ही देख के मुझे ही बोल दिया, ये अच्छा था, but correct, what you are saying is correct। If your analysis is that, it's awesome। Now next, it's not over। This was magnificent a few years back, few years, no, 6 months back, it was awesome। अभी देखो क्या हो गया भाई, अरे पैसा कोई इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता। Nobody wants to get into new business other than our own Mukesh Ambani। वही है जिसको देखो खरीद रहा हो। So I hope you must be knowing that Future Group has been sold for what, some 24,000 crore rupees, right? Anyways, let's not get into that, but other than a few big companies who have tons of cash available with them, people are not ready to invest। तो ये गया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्लीज। वो अच्छा नाम दिखता था, आई एम इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, डेड, ओवर, छोड़ दो। I have a friend who works with a big company in Singapore। There's a reason I'm telling you this, Singapore, and job profile भी कुछ तो vice president है वगैरह। And what are they into? They are into selling luxury items at airports। एयरपोर्ट्स पे बड़े बड़े स्टोर्स हैं, ओनली लग्जरी आइटम्स। तो मुझे तो सुन के डर लगता है। मतलब उनका नॉर्मल रेट, कोई बड़ा अच्छा पर्स है, $1,300, $1,300, $1,500 स्टार्टिंग रेंज है, लग्जरी आइटम। नो सेल, नो सेल, जीरो सेल। अरे किधर से होगा? अच्छा वो तो एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट है, अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैव लॉट ऑफ स्टोर्स, कोई सेल नहीं है, बट वो दैट्स ओके। बट आर पीपल रियली बाइंग लग्जरी आइटम्स राइट नाउ? नो सीरियसली, अदर देन ए फ्यू लॉट जो बहुत रिच है, फिल्दी रिच है। अदर देन दैट, बिकॉज दिस लग्जरी गुड्स बहुत चलता था इन द मिडिल क्लास, like people who were, let's say, earning in, let's say, lakhs per month, ऐसा छोटा ही अमाउंट बोलो, बट उतना वो लोग भी खरीदते थे लग्जरी आइटम। इट्स गॉन, इट्स गॉन। I'll talk about, I may, in fact, I want to give this example right now, luxury, right now। I wanted to give it in the next slide, but अभी देता हूँ मैं luxury में। Automobile, see ये होता है, ये this is how things change। Now if you had heard me couple of months back, I told कि यार अभी तक ऑटोमोबाइल की बैंड बजी हुई है, और मैंने उस वक्त ये भी बोला था कि नहीं ऑटोमोबाइल रिवाइव होगा। एंड मेरा सुन के नहीं हुआ, इट वाज एनालिटिकल, होना ही था, हमको पता था, कोई ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भविष्यवाणी की, बट हुआ। क्यों हुआ उसका रीजन मैं बोलता हूँ, ध्यान से देखो, राइट। एंड मैं ये बात करना चाहता हूँ लग्जरी गुड्स के ऊपर, एंड ऑटोमोबाइल इज गेटिंग कवर्ड। टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में द सेल ऑफ कार्स हैव गॉन ओवर द रूफ, द सेल ऑफ बाइक्स हैज गॉन ओवर द रूफ सडनली। क्यों? थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा सोचोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा सोचोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह पड़ी है, राइट। पीपल आर नाउ, सी नोबडी इज थिंकिंग लाइक दैट। ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत चल रहा है और चलेगा भी। उसका सिंपल रीजन है, व्हेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बची पड़ी है, कोविड-19 का इश्यू है, मुझे सेफ्टी देखना है फैमिली पर्सपेक्टिव से। ऑल दोस पीपल हु यूज्ड टू ट्रेवल ऑन बाइक, व्हाट आर दे सेइंग? Let's get on with cars. Now, why I'm saying this?
सेक्टर टू गेट इनटू, तुम्हें इस सेक्टर के बारे में सोचना चाहिए, राइट? ये सेक्टर छोड़ दो अभी, और ये सेक्टर इतनी आसानी से आने वाला भी नहीं है अभी सामने। आई गारंटी यू एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1.5 to 2 years कोई चांस नहीं है। सेम थिंग विद दिस सेक्टर, सेम थिंग विद दिस सेक्टर, कोई चांस नहीं है। ऑटोमोबाइल डेफिनेटली यस, बिकॉज पीपल हैव टू ट्रेवल, ट्रेवलिंग तो रहेगा ना। अब क्या होगा ना, वो भले ही तुम ट्रेन चला दो, भले ही तुम प्लेन चला दो, लोग बोलेंगे भाई मैं छोटी गाड़ी करके डीजल पेट्रोल डाल के जाऊंगा। सेल्स आर ओवर द रूफ। बाइक्स, एवरीबडी यूज्ड टू ट्रेवल इन दोस बसेस। कैसे तो थोड़ा पैसा अरेंज करके बोलता मैं बाइक खरीद लेता हूँ ना यार, 50,000 60,000 लगेगा ना, ईएमआई पे चली जाएगी। जस्ट इमेजिन हाउ थिंग्स चेंज। नोबडी थॉट दैट वे। पर मुझे मालूम था ये इलेक्ट्रिक कार्स द फ्यूचर, it is the future if you think it that way. Electric cars, I hope you understand why I'm saying all this is sports industry। क्या वो क्रिकेट का किट कौन खरीद रहा अभी, पूरा बैंड बजा हुआ है। I hope you understand, but indoor games definitely yes, इंडोर गेम्स में बहुत स्कोप, और अब वो स्कोप आगे बढ़ेगा, राइट? स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इशू है राइट नाउ, प्लीज अवॉइड। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज होते थे, अभी राइट नाउ इशू है सीरियसली। नाउ देयर इज अ चेंज। लास्ट टाइम जो मैंने जो बोला था आज से 1 महीने पहले, और अभी इसमें चेंज है। व्हाट इज द चेंज? नहीं, अभी कोई वो ब्यूटिशियन वगैरह सब कुछ नहीं चलता। क्या चलता पता है क्या? आप किसी को घर पे जाके ये सर्विस दे सकते हो क्या? पीपल आर रेडी टू पे लाइक हेल, दे आर रेडी टू पे लाइक हेल। आपको घर पे जाके काम करना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री अभी होने वाला है। लोग आपको घर पे बुलाएंगे। आई होप यू, ब्यूटिशियन मतलब होता है ना वो मेकअप करते हैं लोग, एंड शादी में हम किसी को बुलाते हैं, दैट विल बिकम मेन स्ट्रीम नाउ, इट विल बिकम मेन स्ट्रीम। अब लोग ऐसा सोचते नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू डिफरेंट एग्जांपल। गया ये तो अभी डांसिंग एंड सिंगिंग तो ठीक है, आप घर पे जितना कर सकते हो करो। इलेक्ट्रॉनिक्स, एवरीबडी थॉट दैट इलेक्ट्रॉनिक्स नीचे जाएगा। आई थिंक आई मस्ट हैव बीन वन ऑफ दोस फ्यू पीपल हु सेड दैट यस, मोबाइल्स वगैरह कम बिकेंगे, बट वन थिंग विच विल सर्वाइव इज लैपटॉप, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप नहीं सर्वाइव करना चाहिए, मुझे डेस्कटॉप बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ठीक है अभी भी चलता है डेस्कटॉप। व्हाई? द रीजन, सब वो चल रहा है यार, सबको घर से काम करना है, सिस्टम तो चाहिए ना। बच्चे घर पे इससे पढ़ाई कर रहे हैं, सिस्टम तो चाहिए ना, right? So this I had predicted earlier also that yes, electronics will be an issue, but what will not be an issue will be Windows के systems, क्योंकि सब उस पे काम चलेगा, सब उस पे काम चलेगा। ये तो छोड़ दो अभी, ये तो रेस्टोरेंट तो गए, मतलब ये नहीं, होटल्स में स्टे करना is going to be an issue, is going to be an issue. Now this industry is dead. Please छोड़ दो ये industry at least for the next 1.5 2 years. Revive होगा, but it will take its own time, right? Next, garments. भाई प्लीज ये ध्यान से सुनो, गारमेंट नहीं चलेगा अभी at least for next let's say 1 year. But garment is an industry. कपड़े तो पहनने हैं ना यार, तो अभी तो घर पे चलो लोग नहीं पहन रहे, जैसे ही बाहर जाना चालू करेंगे पहनेंगे भाई। तो दिस इज 1 year का, गारमेंट इज 1। रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज शायद 2 साल नहीं चलेगा, 3 साल भी जा सकता है, 2 साल नहीं चलेगा, 3 साल नहीं चलेगा, ये मैक्सिमम 1 साल। ऑलमोस्ट लॉकडाउन ओपन हो रहा है, लोग बाहर जाना चालू कर रहे हैं, मतलब कपड़े बिकेंगे, ठीक है। आई एम वेरी स्पेसिफिक इन टेलिंग यू, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स सी, या नाउ दिस इज अगेन जल्दी खत्म हो रहा है यार। आई थिंक विल फिनिश इन नेक्स्ट 20-25 मिनट्स, ठीक है, एंड आई विल बी रेडी टू टेक योर डाउट्स। या हु थॉट जूम सुना भी नहीं था, नाउ इट्स अ हाउसहोल्ड नेम, इट्स अ हाउसहोल्ड नेम जूम। किसने सुना था ये? नाउ व्हाई आई वांट टू टॉक ऑन दिस इज दिस, आई हैव यूज्ड स्काइप 15 years बैक, 15 साल से मैं यूज कर रहा हूँ, जूम तो आया भी नहीं होगा तब तक। Skype had chance to build something like, because Skype and Zoom are more or less same, huh? Zoom का पता भी नहीं था, what you are saying is correct, Zoom का किसको नहीं मालूम था, Skype सबने सुना हुआ था। Skype had chance to build its software in that manner, उस तरीके से सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, नहीं बनाया तो देख लो किधर चलाएगा, कोई नहीं यूज करता, अब Zoom और Google Meet ही चल रहा है, right? So industries which are working now, why I want to talk on this, प्लीज आप इस पे ध्यान दो। हेल्थ इंडस्ट्री बहुत चल रही है, बैंकिंग इंडस्ट्री डेफिनेटली चलेगी, अब डेफिनेटली चलेगी, ठीक है। इंश्योरेंस तो भर भर के चल रहा है, इंश्योरेंस तो अभी आजकल हर कोई ले रहा है, ठीक है। सो दीज आर सीरियसली, ये तो दिख रहा है, नोबडी थॉट ऑफ दीज।
ऑल MBA colleges I've seen, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिसर्च एनालिस्ट, ये सारे प्रोफाइल बहुत चल रहे थे लास्ट 5-6 साल से. इफ यू लुक एट सम 10 years 15 years back, these are the companies which used to rule at all MBA colleges. सबको इन्हीं बड़ी कंपनीज में जाना होता था कि अरे HUL, अरे ITC, राइट, ये सब कंपनीज में. लास्ट 10 साल से नहीं जा रहे लोग. मतलब मैं साबुन थोड़ी बेचूंगा, मेरे को नहीं देना, पेंटिंग शैम्पू कौन बेचेगा, कुछ डिफरेंट करेंगे हम. ठीक है, अब यही चलेंगे. They are the must now. These companies will rule. Essential services में जो companies है वो चलेंगी. Focus on that now. Online training and applications, huge. लोग क्या भर के ऐप बना रहे हैं यार, seriously. But they are mad. मतलब after Zoom, Google Meet became hit, I've seen so many people made so many apps. सब बकवास है. But चलेगा. ठीक है. These, ये ऑटोमोबाइल we have already discussed, electric cars we have already discussed. YouTube क्या चल रहा है यार. But my only problem with YouTube is कुछ कंट्रोल ही नहीं है. मतलब कि जिसको कुछ डालना है, किसको कुछ डालना है, कुछ भी चल रहा है. If I wanted, I could have taken this session on YouTube Live. You know what is the problem with YouTube Live? Now this I faced, but this was 3 months back. I have understood. If it was a YouTube Live session ना, मतलब कभी 40 बच्चे देख रहे हैं, कभी 100 बच्चे देख रहे हैं, कभी 200 देख रहे हैं, कभी कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, बट Zoom में एटलीस्ट देयर इज सम सीरियसनेस. वी वांट टू, हमें वो सीरियस क्राउड से बात करनी थी. सो वी वांटेड इट ऑन स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म. Zoom पे आ जाओ चुपचाप, मतलब पता है कि तुम थोड़े सीरियस हो. YouTube पे क्या है यार, वो 1 सेकंड के अंदर वो होम का बटन और क्लिक, सब गॉन. नहीं देखना, चल बोर मार रहा है यार, इतना सा बोल के रहे पका रहा, चल कुछ दूसरा टैब ओपन करते हैं ना. तो वो थोड़ा मुझे YouTube का सेशन, बट क्या चल रहा है अभी Udemy. If you want to do some kind of course, right, short term courses, Udemy बहुत चल रहे हैं. These are the industries which will work. हाँ, मतलब I really want to talk on this, क्योंकि बच्चे बहुत बोल रहे हैं कि सर नहीं ऑनलाइन नहीं, हमको ऑफलाइन आना है वगैरह. लेट्स सी, नेगेटिव सबने बोला ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फलाना ढीमका. लेट मी डिस्कस जस्ट अ लिटिल अबाउट क्या इसके फायदे. कोई तो मुझे कोई फायदा बताओ यार, कुछ तो फायदा होगा ना, राइट. सो वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज इज, एक तो ट्रेवल नहीं है. सेकेंडली, दिस इज एज गुड एज पर्सनलाइज्ड लेक्चर यू आर गेटिंग, राइट. नाउ ऑब्वियसली दिस इज, ये तो पूरा एक अक्षता टेल्स मी कि टाइम सेव. अ लॉट ऑफ पीपल आर टेलिंग मी नाउ टाइम सेव, ये ज्यादा अच्छा है, टाइम बचता है, which is perfect. This is as good as personalized. Now obviously अभी हम कोचिंग नहीं कर रहे, मैं कोई पढ़ा नहीं रहा हूँ. जब पढ़ाते हैं ना, so anybody can just ping the faculty. ping मतलब नहीं सर, ये वाला जो आपने पढ़ाया वो समझ में नहीं आया, मुझे वापस बताओ ना. Now just imagine if there are 80 students sitting in a class, like I am telling you, कोई भी बच्चा देखेगा, अरे यार मेरा ही डाउट है क्या, अरे मेरा ही डाउट है क्या, अरे नहीं पूछता हूँ ना यार प्लीज यार. मैं, शर्म इतने लोगों को मार देती है यार. ठीक है, अब कोई शर्म है क्या? तुमको फर्क पड़ने वाला है क्या? तुमने लिख दिया, सर प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, जाने दो, किसको मालूम किसने लिखा. तो फैकल्टी हैज टू अंडरस्टैंड, फैकल्टी हैज टू एक्सप्लेन. दिस इज एज गुड एज पर्सनलाइज्ड. इट नेवर हैपेंड इन द पास्ट. इस लेवल पे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये पता नहीं लोग वैसे सोच क्यों नहीं रहे. तुम देखो ना, तुम कैसे बैठे होंगे अभी घर पे यार. आई एम द वन वियरिंग नाइस शर्ट, पूरा प्रेस करवा के, नहा के भी आया था. कितने लोग नहा के बैठे हुए हैं? थिंक अबाउट इट. पहले क्लास में आते थे क्या, पूरा प्रॉपर तैयार होकर आना पड़ता था, राइट. गया अभी वो जमाना. यू सिट व्हाटएवर वे यू वांट टू सिट, राइट. सो बिग एडवांटेज. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. ऑफलाइन क्लासेस में ये बहुत सारे एडवांटेजेस नहीं थे, राइट. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Yeah, now I'll talk a little about in online lecture we cannot talk with our classmates. Yes guys, yes, this is correct. You cannot talk to your classmates, but you can always have his number, because वो क्लास में अगर वो रहते हैं नंबर, तो आप बाद में फोन पे बात कर सकते हो, ग्रुप बना के अलग से बात कर सकते हो, क्लास में नहीं बात कर सकते, विच इज करेक्ट. ठीक है, पर वो तो वैसे भी नहीं होता था यार. क्लास में वैसे भी तुमको कौन अलाउ करता था बात करने के लिए. सो सी, एक चीज मैं आपको बोलता हूँ ऑनेस्टली, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. दिस विल अगेन गो क्या, नहीं चलो एक सेकेंड. Yeah, here we go. Just a second, huh? Yes. Yeah, here we go. See, last benchers can talk. तू last benchers ही रहा होगा राजा. सुनो ना. ये फिर से, there are always advantages and disadvantages. I understand. Option है क्या?
सो थिंक पॉजिटिवली नहीं यार कि यार नहीं ठीक है मेरे को एडवांटेजेस तो है ना इतने सारे, उसके साथ रहो ना यार, मतलब कुछ तो अच्छा हो ही रहा होगा ना, लिव विद इट। ऑब्वियसली मैंने वही इसके लिए आपको एडवांटेज डिसएडवांटेजेस तो सबको पता है, मैंने 2-3 ऐसे एडवांटेजेस बताए जो लोग नहीं सोचते उस तरीके से यार। जो इनफैक्ट सो मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन एडमिशन विद अस, दे आर सेइंग कि सर प्लीज आप ना जब भी फिजिकल चालू करना, बट ये ऑनलाइन अभी बंद मत करना, मेरे को नहीं ट्रेवल कर, मेरे को सोते सोते ही लेक्चर देखना है। दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग इट, दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। ठीक है, अभी उनका एडवांटेज तो है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये मैं थोड़ा रन थ्रू करूंगा गाइस, इफ यू वांट टू आस्क सेपरेटली यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल ऑलवेज प्रीफर रनिंग थ्रू दिस नाउ। ठीक है, नाउ एमबीए ये साल करना, नेक्स्ट ईयर करना है, आप डिसाइड करो। नंबर वन, मैं ये बोलूंगा क्लियरली, अगर आपको कैट देना है, राइट, जिनको भी जो भी फाइनल ईयर में है, अभी देना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर देना चाहते हैं, आईबीपीएस देना चाहते हैं, माय एडवाइस विल बी वेरी सिंपल, एटलीस्ट अगर पैसा है तो, ऑब्वियसली दैट इज फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड, थोड़ा पैसा अगर है तो प्लीज एग्जाम दे दो यार। ये साल हो सकता है कंपटीशन कम हो, विच आर एक्सपेक्टिंग कंपटीशन कम होगा, बच्चे नहीं ध्यान दे रहे हैं, टेक यूज ऑफ इट, मेक यूज ऑफ इट, एग्जाम तो दो यार। अगर नाउ कैट राइट नाउ कैट 20 इज मोर और लेस आउट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि हो गया अभी 3.5 मंथ बचे हैं, अगर आप कर सकते हो तो बात करो हमारे स्टाफ से, फैकल्टीज से, लेट अस सी व्हाटएवर यू कैन डू, बट कैट 21 के लिए प्रिपेयर तो करो, ये तो ऑप्शन है ही ना, बट नोबडी इज टॉकिंग ऑन वन थिंग एंड दैट इज सीटी। सीटी तो मार्च में आएगा ना, या एमबीए के लिए कितना पैसा चाहिए, आई टेक ऑल योर डाउट्स लेटर, ठीक है, मैं सब एक साथ दूंगा। सीटी तो मार्च में आएगा, मार्च में टाइम है ना यार, तो अभी से चालू कर दो ना यार, मतलब दैट मींस, सो व्हेन आई टॉकिंग ऑफ सीटी, व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ सीटी मार्च में आएगा, वी आर टॉकिंग ऑफ एमबीए स्टार्टिंग इन जून 2021। नाउ वेदर यू अपीयर फॉर कैट 2020 और वेदर यू अपीयर फॉर सीटी 2021 जो मार्च में होगा, नाउ दिस इज गोइंग टू बी इन नवंबर, दिस इज गोइंग टू बी इन मार्च, क्लियर है ये? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। इनका सबका एडमिशन इज जून 2021, जून 2021 में ही चालू होगा कॉलेज। सो यार आई अंडरस्टैंड इसके लिए लेट हो, ये तो कर सकते हो ना, इसमें तो टाइम है, ट्राई तो करो, दैट्स द ओनली पॉइंट, दैट्स इट, ट्राई, दैट्स इट। I really don't want to talk much on this. These are the subjects which are there in any kind of entrance exam, right? I'll take all your doubts later, guys. आप लिखते जाओ, कोई problem नहीं है, right? So these are the subjects which are covered in any kind of exam. मैं ये अभी इस पे अभी नहीं बात करना चाहूंगा, यू कैन टॉक टू आवर अदर फैकल्टीज, यू कैन टॉक टू आवर काउंसलर्स, मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए, इनफैक्ट देयर आर फ्यू नंबर्स व्हिच आर रिटन हियर, यू कैन टॉक ऑन दोस नंबर्स, right, but later, but these are the 4 subjects which are common for any kind of entrance exam, difficulty level सबका अलग होता है। next, extremely important, please take screenshot, जितने लोग हैं सीधा सीधा screenshot ले लो इसका। That's it. These are the, अभी किसी ने पूछा कि सर is it, मतलब can you sir what about job opportunities for freshers? भाई right now job opportunities for freshers बुरा हाल है, let me be honest, right now है, ऐसा नहीं है नहीं है, बट अभी थोड़ा actual में बुरा हाल है, तुमको अभी मिलेगा जॉब, बट क्या लेवल पे मिलेगा, कब वो तुमको एक्चुअल में हायर करेंगे, इज लिटिल डिफिकल्ट, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है ना। और मिलेगा तो वर्क फ्रॉम होम, तो वो कंपनी भी वैसा ही पैसा देगी यार, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टडीज राइट नाउ। ये देखो जरा, राइट, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। तो somebody asked me which other exams can I give, yeah, so I'll talk on job, UK to me, I'll talk on job also separately, ठीक है, don't worry। Now this is it, these are the exams you can appear, और सबका मैंने डेट टाइम सब दिया हुआ है, ठीक है। यू वांट टू टॉक मोर ऑन दिस स्पेसिफिक, जिसको स्पेसिफिक इस पे बात करना है, यू कैन टॉक टू आवर पीपल, दे विल एक्सप्लेन यू मोर। माय जॉब वाज मोर टू टेल यू क्या है, क्या करना है, क्या क्या एग्जाम स्ट्रक्चर है, स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म हो गया। नेक्स्ट, सम ऑफ द टॉप कॉलेजेस, टेक स्क्रीनशॉट ओवर, सम ऑफ द टॉप कॉलेजेस, ट्रस्ट मी दीज आर वेरी गुड एमबीए कॉलेजेस, लाइफ सेट हो जाती है। Next, take screenshot, that's it. Yeah, bank PO again. This is what I would like to talk. ये है बैंकिंग सेक्टर में, अगर किसी को जाना है तो 2 तरह के बैंक है, एक SBI और एक ऑल अदर बैंक्स, राइट। वी आर टॉकिंग ऑफ मोर और लेस
वी आर टॉकिंग मोर और लेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू ग्रेट एक्सटेंट. देखो अभी मुझे वो अभिषेक का वीडियो भी नजर आ रहा है, सोते हुए देख रहा है वीडियो, देखो राइट अभिषेक. सो यार अभी वीडियो बंद कर देगा. See, you should have seen this, you should have seen this now. क्या फर्क पड़ रहा है यार? I am faculty is the one who has to sit straight and they do this and that. I love this. अच्छा उसने वीडियो ऑन किया, राइट. और वो आंचल एकदम बिल्कुल सीधी बैठी हुई है, अदरवाइज ऐसा होना नहीं चाहिए. गुड गाइस, I would love to see people's video, but not right now. Anyways, yeah. So let's go through this now. This I would like to do faster. Two types of banks. One is private sector bank. Second is public sector banks. ठीक है. अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, भाई अभी ICICI वगैरह कैसे ये लोग हायर कर रहे हैं, दिस इज मोर और लेस हायर एंड फायर पॉलिसी. आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट यस कुछ जब भी रिक्रूटमेंट आएगा तो आपको पता चल जाएगा. बट बुरा हाल है, जो है उनको निकाल रहे हैं यहाँ. तो क्या बात करेंगे. कोइंसिडेंटली इनमें रिक्वायरमेंट्स आए हैं. Now, when I say coincident, एक्चुअल में रिक्वायरमेंट्स थे. इन्होंने पहले से कम हायरिंग रखी थी. जैसे ही लॉकडाउन हुआ उन्हें पता चला कि अरे यार हमारे पास लिटरली लोग कम हैं, दे स्टार्टेड हायरिंग, राइट. और क्या हुआ ना, बहुत सारे बुजुर्ग लोग ये सारे बैंक में काम करता है. आई शुड नॉट से इट दैट वे. बहुत सारे बुजुर्ग लोग काम करते हैं तो ऑफिस आना बंद कर दिया. उनको फर्क नहीं पड़ता, सैलरी तो मिलने वाली है और कोविड-19 डर है, नहीं आएंगे हम ऑफिस, जो करना कर लो, गवर्नमेंट निकाल तो सकती नहीं है. सडनली दे लोग कम थे उनके पास. सो इनके पास रिक्वायरमेंट आए हैं. अभी IBPS का आया है, राइट. अभी एक एग्जाम तो अभी है 12 सितंबर को. ओपनिंग अकाउंट्स एंड ऑल एक्सेप्ट दिस. यस यस, ऑल डाउट्स आई टेक, डोंट वरी. ठीक है. सो अभी आया है IBPS के थ्रू रिक्वायरमेंट. माय पॉइंट इज SBI खुद का एग्जाम लेता है. All other banks together, there is Dena Bank, ये सारे बैंक्स के नाम यहाँ पे मेंशन है. ये इतने सारे बैंक ने मिलके किसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया? IBPS को. IBPS is not a bank, guys. I hope you understand. IBPS is not a bank. So IBPS का अब भी RRB and PO का नोटिफिकेशन आया हुआ है. वैकेंसीज थोड़े कम है, जितने एक्सपेक्टेड थे उतने नहीं है, पर है, विच मीन्स चांसेस तो है. ऑप्शन तो रखो हाथ में, राइट. SBI वी आर एक्सपेक्टिंग नवंबर में एग्जाम होगा इनका. SBI वी आर एक्सपेक्टिंग नवंबर में एग्जाम होगा, राइट. सो दिस प्लीज नोट इट डाउन. सो एक IBPS साल में एग्जाम कंडक्ट करता है. IBPS एक क्लर्क का एग्जाम कंडक्ट करता है, एक PO का एग्जाम कंडक्ट करता है. SBI भी क्लर्क का एग्जाम कंडक्ट करता है और PO का एग्जाम करता है. तो ये 4 एग्जाम तो हर साल होते हैं. यूजुअली SBI का जो एग्जाम होता है ये दोनों का वो होता है जून में, पर ये साल तो नहीं हुआ. So everything will happen in November now. Now बोलोगे सर आपको क्या मालूम होगा? भाई इसके लिए मालूम है क्योंकि IBPS के एग्जाम के डेट्स आके फॉर्म निकल के लास्ट डेट भी चला गया. आई थिंक एक PO का अभी भी डेट बाकी है, बट एग्जाम हो रहा है, डेट्स आ गए हैं, हॉल टिकट आ रहे हैं बच्चों के, तो विच मींस इट इज देयर. तो अगर ये ले रहा है तो इसके बाद ऑप्शन नहीं है, इसको लेना पड़ेगा, राइट. सो एग्जाम्स आर गोइंग टू हैपन. ट्राई तो करो. दिस वी हैव डिस्कस्ड. या ये जो अभी जो एक आया है और इसका तो डेट भी आ गया. ये फॉर्म जाके टाइम हो चुका है, देखो लास्ट डेट भी जा चुका है. 12 सितंबर को एग्जाम है ऑलरेडी, राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड. लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी नो दैट 12 सितंबर को एग्जाम आ गया है, राइट. सो व्हिच मींस इट इज गोइंग टू हैपन. सो नाउ व्हाई आई हैव गिवन दिस इज ऑफिशियली आया था, राइट. सो यू शुड नो दैट. नेक्स्ट, एग्जाम स्ट्रक्चर वगैरह गाइस, आई वुडंट लाइक टू टॉक मच ऑन दैट राइट नाउ. सब्जेक्ट्स वही 4 होते हैं, किसी में 2 सब्जेक्ट आते हैं, किसी में 3 आते हैं, बट इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट. मेन 4 सब्जेक्ट होते हैं विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है. फॉर दिस यू कैन गेट इन टच विद आवर other faculty team members, other team members, they'll explain you more. So I don't want to get into these things. I really don't want to get into these things. Yeah, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट. वो बच्चे आ जाते हैं, सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करना, फास्टर सॉल्व करना इज एनी टाइम इंपॉर्टेंट, वो आपको पढ़ के आएगा, राइट. एंड नोबडी टॉक्स अबाउट दिस. ये तो कोई बात ही नहीं करता है. दैट इज व्हाई आई हैव स्पेसिफिकली रिटन इट हियर. इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग द होल पेपर. नहीं होता कि अरे मैं नहीं कर सकता एग्जाम में सॉल्व. इट्स अबाउट लीविंग द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, फाइंडिंग द इजियर क्वेश्चंस एंड सॉल्विंग देम फास्टर. क्योंकि मार्क्स तो सबका सेम ही मिलना है यार. अभी समझो मुझे नहीं आता ज्योमेट्री यार, नहीं आता तो नहीं आता, छोड़ना यार. तो वो करना जो तेरे को आता है और फास्टर आता है, right. Nobody focuses on this. This is extremely important, guys.
ठीक है, लीव दोस डिफिकल्ट क्वेश्चंस। क्या होता है ना, ग्रेजुएशन से दिमाग में बैठा हुआ रहता है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, अरे 5 क्वेश्चन है तो 5 अटेम्प्ट करने हैं, 20 मार्क नहीं आएंगे, अरे नहीं होता इसमें ऐसा, राइट? जस्ट टू लेट यू नो कैट, right? I'll talk about, so I won't talk about marks, I'll talk about percentage of marks. 100% में से अगर आपको 40% मार्क्स आते हैं ना, now why I'm talking in percentage, why? Because मैं आपको total number of marks और number of question बताऊंगा, could be confusing. Just understand 100% मार्क्स में से अगर आपको 40% क्वेश्चन 40% मार्क्स आते हैं ना, I am call, which means easy भी नहीं है, मतलब ऐसा अरे अब तो हम आई एम जाएंगे, ऐसा नहीं है। Why I'm saying this is कि यार in CAT there are 100 questions. If you get 40 correct, that's it, you are in IIMS. और 44 कुछ correct हुआ, yes, banking exam, yes. Anchu, get in touch with either Sunita ma'am or Asha ma'am. Yes, there are exams. मुझे exactly अभी 8% last date पता नहीं है, but अभी PO का last date जा रहा था, मतलब अभी बच्चे PO के लिए prepare कर रहे हैं हमारे पास में, right? So just get in touch with either Sunita ma'am और Asha ma'am, या जो भी नंबर होगा ना ग्रुप में, जो एडमिन होंगे, एक बार आप बिंदास उनसे बात करो, they'll explain you everything, right? Now बैंकिंग, अरे मैं बैंकिंग की बात करता हूँ यार, बैंकिंग में 100 क्वेश्चंस, राइट? इफ यू गेट, बैंकिंग का थोड़ा एग्जाम इजी होता है, इसके लिए कट ऑफ भी ज्यादा होता है, इफ यू गेट अराउंड 60 करेक्ट, यू गेट सेलेक्टेड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस गाइस, जस्ट होल्ड ऑन। शायद मेरे यहाँ पे इंटरनेट का नहीं, अभी नहीं होना चाहिए इंटरनेट इशू। गाइज, आर यू फाइंडिंग इंटरनेट इशू फ्रॉम माई साइड? लेट मी नो अगर किसी को भी मेरी तरफ से इंटरनेट इशू आ रहा है। नहीं प्रतिमा, नहीं नहीं, ओके वेरी गुड, नॉट नाउ, बीच में 1 सेकंड के लिए आया था, सो नाउ इट इज नॉट देयर, फेयर अप, नहीं होगा अभी। और थोड़ा भी आए प्लीज यहाँ पे लिख दो सर इंटरनेट इशू। नाउ लेट्स सी, सो व्हिच मींस 100 में से 60 मार्क्स चाहिए भी, 100 नहीं चाहिए, व्हिच मींस यू शुड नो व्हिच 40 क्वेश्चंस टू लीव। छोड़ दो ना यार, दिल लगा के क्यों बैठे उस पे यार, नहीं आता तो नहीं आता। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। दिस इज द मिस्टेक विच पीपल डू, वो इस पे दिमाग लगाएंगे, सर ज्योमेट्री नहीं आता, ज्योमेट्री पढ़ाओ, ज्योमेट्री नहीं आता, नहीं आता पढ़ाओ सर, पूरा 5 दिन पढ़ेंगे, 6 दिन पढ़ेंगे, 7 दिन पढ़ेंगे और 1 क्वेश्चन आएगा। 5 क्वेश्चन आते कोडिंग के, वो पढ़ो ना, उसको अच्छा करो ना। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। It is not about solving all questions. It is about solving less number of questions, but those questions जो fast हो सकते हैं। पता नहीं मैं कितनी बार ये बोलता हूँ, छोड़ दो हर टॉपिक यार, मैं खुद बच्चों को बोलता हूँ ये 2 टॉपिक छोड़ दे यार, राइट? बट हम पढ़ाते हैं। हम क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि हमने नहीं पढ़ाया ना, यू नो, बच्चे क्या बोलते हैं, सर आपने वो टॉपिक पढ़ाया नहीं, सर वो टॉपिक के 2 क्वेश्चन आए और वो 2 क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर पाया, इसके लिए मैं फेल हो गया। भाई 100 क्वेश्चन है यार। तो ये आज से 6-7 साल पहले हमने किया था, यार बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होता था, हम पढ़ाते थे, बच्चों को फिर भी ऊपर से जाता था, बच्चे उसमें दिमाग लगाते थे, ज्यादा दिमाग लगाते थे, नहीं समझते थे कि ये छोड़ना है, लेकिन फिर भी तो हमने नहीं पढ़ाया। 1 साल ऐसा किया और बच्चों ने हमें ही बोला, नहीं सर वो आपने वो टॉपिक पढ़ाया नहीं। तो वी विल टीच यू एवरीथिंग, वी विल टीच यू एवरीथिंग, यू आर सपोज्ड टू लीव ए फ्यू डिफिकल्ट टॉपिक्स, यू शुड। पीपल डोंट टॉक ऑन दिस, बात ही नहीं करते इसके ऊपर। ब्यूटीफुल। जो लोग छोड़ के गए अभी उनका वो नुकसान अभी मैं क्या बताऊं यार। सी अराउंड 7-8 people have already left, but might be because of internet that happens, ठीक है। I'm really happy to see still 77 people here, right? अब तक तो कम से कम 30-40 ही बसने चाहिए थे, but it is good guys। वो एग्जाम होगा कैसे भी, nobody is talking on this। कैसे लेंगे? सेंटर पे बुलाएंगे तुमको, वही ग्रेजुएशन वाली बात होगी, कैसे बुलाएंगे, किधर बुलाएंगे? So guys, just for your information, I'm telling you right now, this is what has already happened। अभी तुम्हें एग्जाम के नाम पता नहीं होंगे, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। NMIMS is a deemed university, मिथिबाई कॉलेज विलेपार्ला, ठीक है। उनका एक BBA प्रोग्राम होता है, अंडर ग्रेजुएट, मतलब 12th के बाद में, राइट? बच्चे 3 साल का। Why should we leave if we get to get, yeah good, मतलब I'm happy to hear this thing guys, ठीक है। बच्चे लिख के भेज रहे हैं कि हाँ भाई हमें नॉलेज, तो मेरा काम वही है यार। मैं मार्केटिंग, मेरा देखो ज्यादा, मैंने कुछ ज्यादा बोला नहीं है, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा सा लास्ट में बोल दूंगा 5 मिनट, वो सुन लेना बहुत है। उनका एक BBA का
आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीबीए, ठीक है, घर से हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, घर से हुआ। सिमिलरली मतलब उन्होंने वो सिस्टम वैसा सेट किया कि आप घर से वो एग्जाम दे सकते हो, आप घर से एग्जाम दे सकते हो, मतलब आपके पास सिस्टम होना चाहिए, लैपटॉप, डेस्कटॉप, समथिंग, स्क्रीन से सब दिखेगा, आपका स्क्रीन वो फॉलो करेंगे, आपको कैलसी नहीं अलाउ करेंगे, एवरीथिंग घर से हुआ है। राइट, पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट घर से हुआ मतलब दे आर वर्किंग ऑन द, दे हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन द सिस्टम कि घर से आप एग्जाम दे सकते हो। सिम्बाइस इज सिमिलर प्रोग्राम, उसका नाम है एसीटी। नो नो नो, यू कैन नॉट कॉपी, तू एग्जाम दे, यस तेरे को पता चलेगा। इट्स नॉट दैट इजी, उसके तरीके में बाद में अलग से बताऊंगा कॉपी कैसे कर सकते हो, मैंने कुछ बच्चों को बताया है, पर वो अलग है, मतलब वो मैं ऐसे ओपन फॉरम में नहीं बोल सकता। एनीवेज, एसीटी सेम बीबीए का एग्जाम, सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम, घर से। अब भी हुआ, आई डोंट नो वेदर यू पीपल नो इट और नॉट, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, पता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी का अब भी हुआ है, फाउंडेशन उसको बोलते हैं, या फिर आई डोंट नो, जो फर्स्ट एग्जाम उनका होता है घर से। अभी हुआ कुछ, अभी 28 को या 29 को, अभी 2 दिन पहले एग्जाम हुआ, घर से बच्चों ने एग्जाम दिया है, विच मीन्स दे हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन ए सिस्टम wherein you can appear for exam from home. I hope you are able to understand. मतलब now is it compulsory ये लोग ऐसा करें, लेकिन अभी तक लास्ट 4 महीने में जो एग्जाम्स हुए वो वैसे ही हो रहे। So why is there chaos for NEET और IIT का जो जेई एंट्रेंस एग्जाम होता है, मेंस एंड एडवांस्ड IIT जेई, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। 12th के बाद में जो इंजीनियरिंग के लिए जो एग्जाम होता है, इसका प्रॉब्लम ये है क्योंकि वो घर से नहीं, वो सेंटर पे आने को बोल रहे हैं, इसके लिए दिस इज ऑल, दिस केओस इज देयर, राइट। IBPS हैज ऑलरेडी वर्कड ऑन द सिस्टम जहां पे वो घर से एग्जाम देना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आप बोलोगे सर मेरे पास तो कंप्यूटर नहीं है, तो मैं घर पे कैसे दूं, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं घर पे कैसे दूं। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन के हिसाब से कहीं तो अरेंज करके रखो, किसी दोस्त से बात करके रखो, कोई साइबर कैफे वाले से बात करो, कहीं तो बात करके आपको अरेंज करना पड़ेगा। दैट्स इट, घर से हो रहा है। वी आर एक्सपेक्टिंग कैट शायद घर से हो यार, बट अभी ये कैट थोड़ा बड़े लेवल का एग्जाम है, तो दे आर वर्किंग ऑन प्रॉपर इंस्टीट्यूट टाई अप, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वो सब बात करें, और प्लस 29 नवंबर, अभी या तो 29 है या 28 तो मुझे याद नहीं है, 29 नवंबर मतलब टाइम है, सो दे कैन वर्क ऑन द सिस्टम। बट अभी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं या तो घर से, और अगर उन्होंने इंस्टीट्यूट में बुलाया तो वो बराबर सिस्टम्स फॉलो करेंगे। पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5 एग्जाम अगर घर से हो चुके हैं तो अभी भी घर से होगा, मत टेंशन लो, सीरियसली मत टेंशन लो, राइट। तो अब आप बोलोगे कि सर अगर ये घर से हो रहे तो ये ग्रेजुएशन के एग्जाम घर से क्यों नहीं हो सकते? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ग्रेजुएशन के एग्जाम घर से इसके लिए नहीं हो सकते भाई, उसमें लिखना पड़ता है, वो तुम्हारा क्या पेपर पे, ये MCQ होते हैं ऑनलाइन, वो तुमको पेपर देते हैं, फिर तुम वो पेपर पे लिखते हो, ऑल द टेक्नोलॉजी वो सब लिखते हो, तो वो घर से करवाना बहुत मुश्किल है। आई होप यू गेटिंग माई, ये ऑल अदर एग्जाम्स आर डिजिटलाइज्ड, ये ग्रेजुएशन एग्जाम इज नॉट डिजिटलाइज्ड, दैट इज द प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ, राइट। या गैलेक्सी J5 प्राइम has raised his or her hand. ये अच्छा नाम तो लिखे यार। Now I won't talk much on this guys. I would hello, I'll be taking all your doubts and everything guys, don't worry. I wouldn't like to, you can go through this, थोड़ा सा देख लो, मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करना चाहूंगा। I'll finish the next all these things in next 5 minutes. We have been doing extremely good in last 10 years. Last 4 months have been fabulous. थोड़े बहुत इश्यूज आए हैं, बट हमने ये लास्ट 4 मंथ्स में भी बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। यू वोंट बिलीव, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का हमने लेक्चर लिए, 5 लेक्चर्स लगे 2-2 घंटे के, जिसमें से कुछ लेक्चर तो 2.5 घंटे के, 10 hours ओनली टू टीच टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। एंड मैं कोचिंग क्लास का दूसरे का नाम नहीं लूंगा, एक सम अदर कोचिंग क्लास, उनका ऑफिशियली उनके पेज पे लिखा हुआ है पूरा हायर मैथ्स का मॉड्यूल, पूरा मॉड्यूल, मतलब जिसमें TSD, टाइम एंड वर्क, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन सब कुछ आता है, 5 hours। और हमारा एक टॉपिक 10 घंटे, कोई कंपैरिजन नहीं है, बट वो दैट इज जो हमारे बच्चे वो समझेंगे। जो आप अटेंड करके देखो तो आपको पता चलेगा द काइंड ऑफ एफर्ट्स यू आर मेकिंग इन दिस ऑनलाइन।
Yeah, so yeah, we'll talk of all the things which students are picking, right? So we have been doing quite well in last so many years. 4 months have been amazing as far as the teaching is concerned, right? ये सब आप देख लो, right? Screenshot ले लो, or we'll send you separately. I prefer sending all these things on group separately. आप देख लेना, ठीक है? Yeah, this is what we have been doing over the years. I'll separately send it to you. That's it. मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. कुछ इसमें एक दो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं देख लूंगा. Is we do placement training in various engineering colleges. Right, we've been doing it for quite some time. These are some of the, these DSEC, Francis, these are some good engineering colleges. I don't know how many of you know this lady, Rashmi Bansal, has visited our place for guest lecture. She charged us a bomb, but that is okay. She's an IIM Ahmedabad alumni and quite a famous author. कम से कम 10-12 books लिखे हैं, Stay Hungry, Stay Foolish, Connect the Dots. बहुत अच्छे books लिखे हैं उन्होंने. So last year we had Arun Sharma also with us. Arun Sharma again is quite a famous author of cat books. Quite nahi, in fact he is the legend in this industry. मतलब उनकी वो कैट की बुक्स, अरुण शर्मा के नाम से आप सर्च करो आपको पता चल जाएगा. अरुण शर्मा सिर्फ सर्च करो, कैट बुक्स के सबसे बड़ा नाम उन्हीं का है, ठीक है? सो वी इनवाइट दिस काइंड ऑफ पीपल, क्योंकि फर्क पड़ता है इन लोगों से जब बच्चे इनसे बात करते हैं. सम ऑफ द रिजल्ट ऑफ आवर लास्ट ईयर, 70+ IIM calls. दिस इज व्हाट वी हैड लास्ट ईयर, राइट? अच्छा, वो जो मैं 70+ बोलता हूँ तो ऑल टॉप कॉलेजेस है. IIM ABC, ABCLI, सब टॉप कॉलेज. मैंने नीचे के कॉलेजेस के नाम भी नहीं लिखे, उसमें इनको NM भी मिला, सिम्बायोसिस भी मिला, वो सब जाने दो. ओनली टॉप कॉलेजेस, only top colleges, all top colleges, all top colleges. Yeah, right? So this is what we have done in the past. Yeah, अभी मैं, अच्छा प्लीज वो सर आप GDPI कैसे करोगे भाई? नहीं करेंगे यार. अभी कैसे GD करूं मैं जब तुम ऑफिस नहीं आओगे? तो लेट्स अंडरस्टैंड फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट? तुम बोलोगे सर बेवकूफ बना रहे हो, आप GD लोगे कैसे? भाई अगर ऑफिस नहीं खुलेगा तो GD नहीं लेंगे, सिंपल है. पर अगर कंपलसरी GD हुआ तो हम ये भी लेंगे, वॉट एवर सोशल डिस्टेंसिंग जो भी हमको करना पड़ेगा. मोर इंपॉर्टेंटली वी डिड इट लास्ट टाइम. अगर इन लोगों ने ऑनलाइन GD कंडक्ट किए तो हम भी लेंगे, राइट? सो डोंट वरी, वी आर देयर. वो हमको सब आता है, ये सब हम कर लेंगे, राइट? सो दिस इज ऑल देयर, all the results which we have mentioned. Anything? I don't think. Yeah, these are some of the numbers which I mentioned. You can get in touch with, I think it's the same numbers which are somewhere here also. We'll send this number separately. कोई भी doubt होगा please उस पे ले लीजिए. So this is it now. I'll straight away start taking doubts of students. Yeah, this is it. Now I'll start taking doubts. And only if I need this screen, I'll share the screen. Okay, here we go. Now this is not required, so shouldn't be. Yeah, okay, here we go. Okay, let's see. Fair enough. So I'll start taking doubts. मैं normally FIFO method होता, first in first out, पर मैं नीचे से चालू करूंगा guys. Any doubt, please feel free. You can talk to us. ठीक है, चलो. Let's say written exam for TYS is beyond imagination. Yes, it is beyond imagination, but अभी ले रहे हैं ये लोग. सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला कैसे लेंगे भगवान मालिक है, ठीक है? somebody, जो भी बच्चे लिख रहे हैं, anybody can copy. No, that was out of question. As I told, UGC has given time by tomorrow to submit modes. Correct. So somebody has written me Galaxy J5 Prime. अपना नाम लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है. UGC has given time by tomorrow to submit modes of taking exam. Guys, let's understand. डिफेंस एग्जाम सब होगा, अभी नहीं, लेकिन अभी नहीं होगा वो एग्जाम, बाद में होगा. रौनक, वो एग्जाम अभी बाद में होगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. यूजीसी ने बोला है कि आप हमें लिख के सबमिट करो, आप एग्जाम कैसे कंडक्ट करोगे? सुन के लो है ये, और ये भी चल रहा है मार्केट में. मैं लिख के दे दूंगा, मेरे को लिख के देने में पेपर ही तो बनाना है. तो दे विल, गवर्नमेंट विल मेक 5 people सिट, ए भाई लिखो रे, हम ये सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे, हम 50,000 करोड़ का सैनिटाइजर लेके आएंगे, हम लोगों को मास्क बनाएंगे, हम एक कॉलेज में एक ही बच्चे को बैठाएंगे. लिखने में क्या है? वेदर आई एक्चुअली फॉलो और नॉट, आप आओगे क्या दिखने? I'll tell you right now what has happened. ये कल का बात है, कल का मुझे कल का पता चला मुझे. Guys, I don't know whether you guys know these little things or not. अभी हुआ है यार. राजस्थान is allowed, शादी में आप जितने लोग चाहे लेके जा सकते हो. 50 was the limit earlier, right? I just came to know yesterday. You take as many people as you want, कोई प्रॉब्लम नहीं है. But the
जगह where you are going to have your marriage or the function should be of double capacity. ये उन्होंने रूल निकाला है. How will you judge? डबल कैपेसिटी कैसे पता चलेगा? तो कोई आके चेक करेगा, स्क्वायर फीट नाप के देखेगा? तुम कर सकोगे क्या ऐसा? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो ये रूल लिख के दे देंगे, तुम डाले तो बाद में क्या होगा तुम्हें भी पता है. लिखने में तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं, हम ऐसे पढ़ाएंगे वैसे पढ़ाएंगे, ये होगा बच्चे का ये हो जाएगा. क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब बकवास है. Yes, Tavis, correct. Banking exam in future, if there is any webinar, let me know. Palak, I will prefer get in touch with any of the numbers which are mentioned here. Sunita ma'am, Asha ma'am, Vagera, they'll explain you more. We have already conducted banking seminar separately, but this was a generalized seminar, so I did not talk. So don't take it negatively कि यार मैंने बताया नहीं. I was never supposed to explain everything on banking. No. आप मेरे टीम मेंबर में से किसी से भी टच में आइए, they will explain you. And we are not asking for you to take admission. आप पूरा समझ लो, फिर जो आपको करना वो करो. ठीक है. नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट अबाउट डिफेंस एग्जाम, बाद में होगा. महाराष्ट्र स्टेट कैन नॉट टेक रिटन एग्जाम, दे ओनली हैव ऑप्शन फॉर ईदर असाइनमेंट और सम अदर मोड बट नॉट रिटन एग्जाम. अभी तक तो यही लिखा है कि वो रिटन एग्जाम लेंगे. ठीक है. नाउ ओके, एनीथिंग? यस, देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस. Yes, banking exam. Anshu has asked. Get in touch with either Sunita ma'am or Asha ma'am. एक लास्ट डेट अभी था, अब भी था. आप नंबर पे एक बार बात कीजिए, they'll explain you everything. ठीक है. Next, Chaduto, finance sector except loan sanction, opening accounts and all. Except this, what are the opportunities on finance? Yeah, okay. So finance में क्या क्या opportunities हैं? थोड़े अपॉर्चुनिटीज कम होंगे. मैं आपको जो है क्लियरली बोल रहा हूं. आपने पूछा फाइनेंस में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होंगे. यस, थोड़े अपॉर्चुनिटीज कम होंगे, बट द अपॉर्चुनिटीज विल बी अवेलेबल. महिमा, सो मार्केटिंग में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगे? ह्यूज. फाइनेंस में, दिस इज फॉर मार्केटिंग, जो फैक्ट है वो बता रहा हूं. फाइनेंस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगे? लेस. फैक्ट. एचआर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगे? मॉडल इज जीरो. Yeah, so I mean, by which month will I come out? Yeah, I'll explain. मैं अभी एक चीज, one thing at a time is what I'm going to take, right? So yes, marketing में बहुत सारे opportunities है. उसका reason simple है, अभी बेचना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, right? तो आप अगर अच्छा digital marketing, huge thing. Media marketing, advertisement, media मतलब not those only TV advertisement or newspaper advertisement. जैसे और भी बहुत सारे का मीडिया, जैसे बाहर होर्डिंग लगाना. ठीक है. डिजिटल इज ए पार्ट ऑफ मीडिया, राइट? ये रेडियो पे जो लोग सुनते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ मीडिया. ह्यूज. जस्ट एडवर्टाइजिंग, सोशल, वही डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ह्यूज 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 ह्यूज. ठीक है. फाइनेंस थोड़ा कम रहेगा, पर मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे एनालिस्ट. Just hold on, guys. And just hold on, guys. I'll just put in my this thing. Just a second, huh? Just a second. Yes. Okay, here we go. Yeah, just that battery was going to end. Yeah, so here we go. Analyst. फाइनेंस में एनालिस्ट के जॉब अभी भी रहेंगे. ठीक है. फाइनेंशियल एनालिस्ट रहेगा, इक्विटी एनालिस्ट भी रहेगा, डेटा एनालिस्ट भी रहेगा. ये जो भी आप बोल रहे हो, मैं ये सब पे एक्सप्लेनेशन विल बी लिटिल टू मच राइट नाउ. एनालिस्ट मतलब यार आप किसी बड़ी कंपनी के लिए काम करते हो, वो कंपनी में, या वो कंपनी में किसी ने अपना पैसा दिया है कि यार मेरे को किस में इक्विटी में पैसा डालना चाहिए. लेट्स से आई गॉट 5,000 करोड़ रुपीस. आई विश आई हैड 5,000 करोड़ रुपीस. तो चलो कौन से इक्विटी में डालना चाहिए, राइट? तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अलग अलग जगह पे पैसा डालते हैं, तो वो एनालिसिस करके, राइट? दैट्स द बेसिक. मैं बहुत बेस लेवल पे आपको बता रहा हूँ, मैं बड़े लेवल पे अभी बताऊंगा, समझेगा नहीं, राइट? दैट्स द बेसिक प्रोफाइल, पर वो चलेगा, राइट? आप लिटरली पीपल आर इन्वेस्टिंग मनी. करेक्ट. आई मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन ओनली फाइनेंस एज ए कैरियर. मैं सेपरेटली बनाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा. बट बहुत बड़ा फील्ड है, चलेगा, लेकिन कम, अभी थोड़ा कम होगा. I hope you understand. अभी थोड़ा definitely कम होगा. I can't help it. I can't help it. As simple as it gets. Yes. We will inform you on Zoom. No issues. ठीक है. Next.
ऑल अकाउंट एनालिस्ट नहीं, डेटा एनालिसिस डेफिनेटली चलेगा। अभी देखो, जैसे आपने पूछा डेटा एनालिस्ट, इतना डेटा अवेलेबल है मार्केट में, उसको एनालिसिस करना इज ए टास्क। Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वर्क ऑन दैट, फेसबुक वर्क ऑन दैट, वो सब उसी पे तो काम चलता है। ऑल डेटा एनालिसिस, ह्यूज ह्यूज अपॉर्चुनिटी, ठीक है। लेकिन जो आज से 4 साल पहले थी, 6 महीने पहले थी, 1 ईयर पहले थी, वो कम है। अभिषेक, एचआर में अपॉर्चुनिटीज अभी कम है तो है, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन कम है। सो अंटिल एंड अनलेस यू आर फ्रॉम सम टॉप एचआर कॉलेज, कम है। I have come to know that as per new NEP, see guys, NEP जो नया आया है, it is more for, अगर आप देखोगे ग्रेजुएशन के नीचे लेवल पे ज्यादा है, राइट। जो लोग बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, थोड़ा कम इम्पैक्ट होगा उनके ऊपर। सो एज ऑफ नाउ यू गाइज डोंट फॉरगेट, ठीक है। नेक्स्ट, और किसने क्या पूछा है? लोग वेब सीरीज देख रहे हैं, यस वो बराबर है, लोग वेब सीरीज देख रहे हैं, वी कांट हेल्प इट। फ्रेंच स्पेनिश पढ़ो, यस कोई बात नहीं, बराबर है। Video recording, get in touch with my team, they'll give you. Yeah, yes, 30-35 of, we have discussed pharmacy and insurance are on boom, yes, which is correct. Okay, somebody asked me MBA करने के लिए कितना कैश लगेगा। पहली बात तो कैश नहीं लगेगा, आजकल कैश खत्म, तो कैश बोल मत, यहाँ पे मेरी बैंड बच जाएगी यार। It's not about cash, it is simple right now. You need money, yes, but please लोन होता है यार। My home loan is 7% rate of interest पे यार, 7% rate of interest। एजुकेशन लोन 8%, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है, तेरे को क्यों घर का पैसा डालना है यार? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नोबडी शुड, इनफैक्ट 99% of the people who do their MBA, 99% of घर पे करोड़पति होंगे बट एजुकेशन लोन लेके करते हैं। बैंक्स आर रेडी टू गिव लोन्स राइट नाउ। दे अभी कितने डॉक्यूमेंट तो चेक ही नहीं हो रहे, दे दो लोन, राइट। और उनको पता है यार, अगर तू सी ग्रेड है, बी और ए नहीं, बी और ए में तो जाएगा तो वैसे भी मिलेगा, राइट, आराम से लोन मिलता है। अच्छा, क्या लोन लेने के लिए तुझे भागना पड़ेगा? नहीं, किसी को लोन लेने के लिए भागना पड़ता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, एवरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एवरी एमबीए कॉलेज हैज टाई अप विद वेरियस बैंक। एक नहीं, वेरियस बैंक टाई अप होता है। टाइप मतलब यू गेट सेलेक्टेड इन लेट्स से दिस कॉलेज एसपीजे, कुछ नहीं है, एसपीजे का 4 बैंक से टाइप है। आपको सिर्फ अपना कोई 2-3 डॉक्यूमेंट हार्डली 2-3 डॉक्यूमेंट उनको कुछ देना रहता है, एसपीजे का लेटर देना रहता है, सीधा आपका जो फीस होगा वो एसपीजे को चला जाएगा। वो कुछ नहीं कर, इतना इजी है। तो आपको भागना पड़ेगा नहीं, बैंक वाले आपके पीछे भागेंगे। दैट्स द फैक्ट, दैट्स द फैक्ट ऑफ लाइफ, राइट। अभी पैसा मिलना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, जो एक चीज लोग बात ही नहीं करते हैं, वो यही मैं बोला, कुछ चीजें जो मैं बोलता हूँ ना, बिजनेस एनालिस्ट, यस अभी यू आर करेक्ट, लोग बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। लेट्स टॉक ऑफ लोन, लोग बात नहीं करते हैं। इन एजुकेशन देयर इज ए रूल, 2 से 3 साल तक इंटरेस्ट फ्री पैसा रहता है। लेट्स अंडरस्टैंड मॉडिटोरियम एंड इंटरेस्ट फ्री, प्लीज। मॉरिटोरियम में क्या होता है? इंटरेस्ट चल रहा है, पैसा नहीं भरना। अभी जैसे अभी लास्ट 6 मंथ जो गए लोगों को पैसा नहीं भरना, पर इंटरेस्ट तो ऐड हो रहा है। इंटरेस्ट कभी ना कभी तो पे करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। एजुकेशन लोन में देयर इज ए रूलिंग कि फॉर 2-3, कोई कुछ बैंक 2 साल का देते हैं, कुछ बैंक 3 साल का देते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन होता है। मतलब 3 साल तक आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सो लेट्स से यू टेक लोन ऑफ 5 लाख रुपीज, यू स्टार्ट पेइंग इट आफ्टर लेट्स से 2 years। ऑब्वियसली जॉब लगने के बाद में पे करोगे ना, तो आपका प्रिंसिपल 5 लाख ही रहेगा। फ्री मनी, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, इट्स फ्री मनी, फ्री का पैसा बैंक्स देते हैं। गवर्नमेंट का रूलिंग है यार, क्या करेंगे, बैंक को देना पड़ेगा। इट इज देयर, डोंट वरी, ठीक है। सो प्लीज लोन लेके करो। या और एनीबॉडी ऑप्टिंग सीए आफ्टर, या थोड़ा लेट नहीं, ऐसा नहीं लगता, ग्रेजुएशन खत्म हो गया अब सीए चालू करेगा। नॉर्मली सीए इज आफ्टर 12, दैट्स व्हाट वी थिंक। व्हेन आई से दैट्स व्हाट वी थिंक, मतलब दैट्स व्हाट वी मीन, सिंपल। 12th के बाद में चालू करना, अभी सीए चालू करेगा, मिनिमम 4 years लगेंगे सीए करने में। सो अगर ग्रेजुएशन हो गया तो आई थिंक 21 ईयर का होना चाहिए तुझे, 21 या 20 के बीच में कुछ तो होना चाहिए। मतलब मुझे ये यही स्टैंडर्ड एज है, राइट। सो आफ्टर 4 years यू विल पास। अच्छा, वो भी कब?
आफ्टर 4 या 3.5 ईयर्स, 3.5 to 4 ईयर्स है, वो भी तब जब बराबर पास होगा, राइट? वो इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप, फाइनल के 2 ग्रुप बराबर पास होगा, तब ये 3.5 ईयर्स 4 ईयर्स होगा। अगर एक भी ग्रुप फेल हुआ बीच में, फिर 6 महीने गए तो उड़ गया। सो आई थिंक इट्स अ लिटिल टू मच, इट्स अ लिटिल टू मच। सीए जिसको चालू करना 12 के बाद में चालू करो, वी ऑलवेज से दैट। अच्छा, एक सेकंड, सॉरी गाइस, तुम्हें ऐसा लगेगा मैं तो मेरे फील्ड का नहीं बोल रहा, बोथ माय ब्रदर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट? आई हैव आल्सो डन सीडब्ल्यूए करके एक कोर्स होता है, ठीक है? तो सब किए हुए हैं ना, बट सब 12 के बाद में चालू किया था ना। अनसी कर नहीं सकते ऐसा नहीं है, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते यार? मैं कौन हूं रोकने वाला यार? कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उसमें। मुझे ये लगता है टाइम ज्यादा लगेगा, राइट? क्यों उतना टाइम अब वेस्ट करने का? बैंकिंग इंडस्ट्री नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, यस, ह्यूज 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 ह्यूज। बैंकिंग इंडस्ट्री ह्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है बैंकिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि बैंकिंग इज वन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस नाउ इज वन सेक्टर जो हमेशा चलेगा। सीएफए, somebody is asking me, yes, सीएफए यूएस से एफिलिएटेड होता है, अच्छा कोर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट कुछ सी ग्रेड कॉलेज के जो बच्चे होते हैं ना, सी ग्रेड एमबीए कॉलेज के, सी ग्रेड एमबीए कॉलेज से पास आउट हुए, डी ग्रेड एमबीए कॉलेज से पास आउट हुए, तो वो बाद में फाइनेंस में एमबीए करते हैं पहले। आई होप यू अंडरस्टैंड, एमबीए इन फाइनेंस करते हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ नॉट ए एंड बी ग्रेड कॉलेजेस यार। जब आप ए ग्रेड एमबीए कॉलेज से पास आउट हो, बी ग्रेड एमबीए कॉलेज से पास आउट हो, तो सीएफए बच्चों जैसा है, टच नहीं करने का उसको। But if you are from C grade MBA college, D grade MBA college, yes, 10 people go for CFA, वो भी करते हैं। So it's a good degree। एक सेकंड अच्छे से समझो, इसके बाद में मतलब एमबीए करने के बाद में भी वो सीएफए करते हैं, विच मींस वैल्यू एडिशन इसका अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने सिर्फ सीएफए किया, एमबीए नहीं, अगर आपने सिर्फ सीएफए किया है, तो नॉर्मल एवरेज सैलरी इज अप्रोक्सीमेटली 6 लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा कोर्स है। You're a final year student. Should I start studying now for the exams? UGC has announced that exam will be conducted. यार कोमल, I'll tell you what. Simple है यार, आपकी मर्जी है। अभी पढ़ो एक बार, एक ही बार है। अभी 6 महीने से क्या क्या मुझे पता नहीं है। अभी पढ़ो, 15 दिन में कोर्स खत्म करो और फिर छोड़ दो प्लीज। मतलब पता चले अभी एग्जाम का डेट 30th, अभी तो एग्जाम का डेट तो आया नहीं है ना। एग्जाम का डेट समझो 30th नवंबर दिया, क्योंकि लास्ट 2 महीने से तो एक्सटेंड ही कर रहे हैं। उसके बाद में फिर बढ़ा दिया, तो क्या बार बार पढ़ते रहोगे क्या? एक बार पढ़ के खत्म करो, या फिर चुप बैठो, डोंट डू एनीथिंग। व्हाट यू शुड डू इज, एंड में जब एग्जाम का एक्चुअल डेट डिक्लेयर हो जाएगा, यस वी आर कंडक्टिंग एग्जाम फ्रॉम 15 नवंबर, क्योंकि वो आपको कम से कम 12-15 दिन तो देंगे, उनको भी तो सिस्टम सेट करना पड़ेगा ना। सो दे विल गिव यू 15 डेज का टाइम, वो 15 दिन में पढ़ लो। अभी दिमाग मत लगाओ यार, आई एम ब्लंटली टेलिंग यू। Yes, CFA is legal. अरे legal मतलब बराबर है भाई, CFA there is no problem. Somebody is asking me, see, is CFA legal? Yes, CFA is legal. Legal मतलब प्रॉपर यूएस का ऑथराइज डिग्री है। अच्छा एक सेकेंड, इंडिया में जैसे सीए होता है वैसे यूएस में सीएफए होता है। आई होप ये समझ में आया होगा। इट्स लाइक यूएस का सीए। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज एलिजिबिलिटी ऑफ सीएफए? ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन होना चाहिए। गायत्री आप ही पूछो, गायत्री पुरोहित शायद मेरी स्टूडेंट है क्या? यस गायत्री है। अभी आप कह रहे हो ना चुपचाप एमबीए सीट या बैंक का प्रिपरेशन, उस पर ध्यान दो। या सो सीएफए गैलेक्सी J5 प्राइम, सीएफए इज बेसिकली यूएस का, तो मतलब उसका कोई एक्ट वगैरह नहीं है क्योंकि यूएस से है, बट इंडिया में हम यूएस की चीजें ज्यादा मानते हैं ना, वो भी तो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, banks while recruiting, do they look for degree like MBA graduate gets for? Yes, obviously, twinkle टन्ना। मतलब अगर किसी ने एमबीए किया है और आप बैंक में जॉब करना चाहते हो, तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा ही ना। वो तो नो, इफ यू हैव डन एमबीए प्रेफरेंस है, वो कुछ नहीं कर सकते उसमें। नो, बैंकिंग एग्जाम इज नॉट हार्ड टू अटेम्प्ट, इट्स अबाउट कंपटीशन ज्यादा है, डेफिनेटली कंपटीशन ज्यादा है अंशु, बट इट्स अबाउट योर, आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। आपको तो किसी एक बैंक में एक ही जगह जाना है ना, आप उस पर फोकस करो, पुट इन योर एफर्ट। सी ओके, 100 क्वेश्चंस, 60 करेक्ट, आप इस पे फोकस करो, खत्म। अच्छा, मेरे को 6 समझो 70 कट ऑफ है,
हर एक बैंक का अलग अलग होता है, जैसे एसबीआई पीओ अलग है, एसबीआई क्लर्क अलग है, आईबीपीएस पीओ अलग है, आईबीपीएस कितने सारे एग्जाम है यार, सबका अलग अलग कट ऑफ है। आप वो कट ऑफ पे फोकस करो, मेरे को इतने क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, खत्म, दैट्स इट, मैटर ओवर, दैट्स इट। कुछ डिफिकल्ट, मैं मतलब कैट डिफिकल्ट नहीं है, तो ये क्या है? रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज मेकिंग करियर इन कोर फाइनेंस रिक्वायर डिग्री ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। नहीं 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 नहीं, किसने बोला कि, भाई एक सुनना, गैलेक्सी J5 प्राइम, एक बहुत हो गया, अच्छे कॉलेज से एक डिग्री एमबीए फाइनेंस बहुत हो गया, नहीं नहीं, मैं सिर्फ एमबीए फाइनेंस की बात नहीं करूंगा। नंबर 2, ओनली सीएफए, वो भी बहुत हो गया, मतलब चलेगा, ऐसा नहीं कि तुमको जॉब नहीं मिलेगा, तो वाई शुड डू, फिर सीएफए भी करूं, फिर रिस्क मैनेजमेंट का कोई कोर्स करूं, फिर ये करूं, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तेरी मर्जी है, तेरे को 4 कोर्स कर यार, कम ऑन, सो मेनी पीपल जो आईएम्स में जाते हैं, फाइनेंस में एमबीए करते हैं, फिर को थोड़ी कोई 10 डिग्री लेते हैं। अच्छा आईएम्स नहीं, अरे वेलिंग ले ले यार, केजे सोमैया ले ले, डालमिया ले ले, these are all B grade colleges, forget A grade. Why I'm writing this, तुम एक कोई अच्छा डिग्री ले ले यार, which could be CFA, which could be MBA, which could be anything, CA, सब एक जैसी है। MBA फाइनेंस वो तेरी मर्जी है, तेरे को क्या करना है। MBA फाइनेंस मैं तेरे को रैंकिंग वाइज लिख दूंगा, दिस इज व्हाट आई विल प्रीफर। सेकंड विल बी CFA जो यूएस से कनेक्टेड है, थर्ड विल बी CA, कोई भी कर यार, उसके बाद में तेरे कोई रिसर्च एनालिस्ट के छोटे मोटे तो वो कर। किसने बोला, somebody is asking me कि सर अगर मैं बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ तो मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन करना कंपलसरी है क्या? क्यों? बैंक ग्रेजुएशन कंपलसरी है, खत्म हो गया, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। व्हाट इज द स्कोप ऑफ आईटी इन बैंकिंग? ह्यूज नाउ, अर्जुन मुखर्जी, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज आईटी इन बैंकिंग, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन एस वाई, सो व्हाट इज द करेक्ट टाइम फॉर मी टू गिव कैट एग्जाम? विदिता, आप अभी अगर एस वाई में हो तो आप नेक्स्ट ईयर कैट दोगे ना, ये कैट आपको देना ही है। डिफरेंस बिटवीन सी, देविका, आई डिड नॉट, CS एंड CFA, अभी जो मैंने थोड़ा बहुत बताया, CFA इज यूएस का CA, दैट्स इट। CA अगर आपको इंडिया में समझता है, यूएस का CA। CS इज कंपनी सेक्रेटरी, मतलब लॉ से रिलेटेड चीजें, दिस इज नॉट लॉ से रिलेटेड चीजें, बेसिकली अकाउंटिंग। अरे जो CA और CS में डिफरेंस है, वही CFA और CS में डिफरेंस है। आई होप यू अंडरस्टूड देविका। नाउ एनीथिंग एल्स यार, अभी भी 45 लोग हैं, दिस इज अमेजिंग गाइस, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। यस, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, प्लीज फील फ्री। So that's it, no one else has any other doubt? That's it guys, so that's it. ऑप्टिंग CMA, भाई ये गैलेक्सी J5 प्राइम कॉर्नर है भाई, तू सारे कोर्स तो पूछ चुका है, बस अभी एक यही बच गया मेरे को लगता है, डांसिंग और सिंगिंग, तू ये भी पूछ ले, मैं उस पर भी तेरे को बता ही दूंगा, फिर खुश रहना। एक चीज पे फोकस करना है यार, इतना क्यों टेंशन ले रहा है यार? कोई एक तेरे को CFA पसंद है, तू CFA में घुस जा पूरी तरीके से, खत्म। इतना तो CMA, अरे CMA इज लाइक कॉस्ट अकाउंटेंट, क्योंकि ये मैंने खुद ने किया है, तो मेरे को सब CS CFA वगैरह सब मालूम है यार, तो मुझे टेस्ट नहीं कर देगा, ठीक है? जितना और मेरे को नहीं पता होगा तो आई एम समवन जो ब्लंटली बोलूंगा, भाई नहीं मालूम है यार, मेरे को उसका फुल फॉर्म भी नहीं मालूम है। इफ आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैटर खत्म, डोंट वरी। आई एम नॉट समवन की अरे शिट ये मुझे मालूम नहीं है बच्चा मेरे बारे में क्या सोचेगा, जो सोचना है सोच, नहीं आता तो नहीं आता। एवरीबody कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एनीथिंग, जस्ट किडिंग, राइट? एनी MBA टॉप कॉलेज फॉर MBA इन फाइनेंस इन पुणे? MBA SIBM, कुंभा, बोथ आर गुड। यहां से तो तुम फाइनेंस में करो दिव्या, और यू डू इट फ्रॉम मार्केटिंग, बोथ आर वेरी गुड कॉलेजेस। SIBM, right now I would have written SCM HRD also, but since you categorically asked me about SCM HRD, yes, you categorically asked me about finance, so मैंने ये दोनों लिखा, both are very good colleges. Only CFA is beneficial ना? अच्छा, अरे एक कोई एक अच्छा चीज कर लो यार, CFA कर लो, CA कर लो, CS कर लो,
CMA कर लो, इसका थोड़ा वैल्यू कम है, मैंने खुद ने किया तब भी मैं बोल रहा हूँ वैल्यू कम है। MBA कर लो, सब अभी इसको नीचे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका वैल्यू ऐसा है, चलो दोनों जगह लिख देता हूँ यार। डू वन थिंग, बहुत अच्छा, इफ यू डू 2 वेरी गुड, इफ यू डू 3 मोर वेरी गुड, इफ यू डू 4 अभी मोर 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 कितना बोलूं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, डोंट वरी, चिल, फोकस ऑन वन ना, right now you should focus on one, because if you are already a chartered accountant and then if you ask me sir मैं CFA करूं क्या, तो मैं एक अलग से आंसर देना चाहूंगा। right now मेरे को तीनों तो नहीं करना है यार, एक कर ले या कोई एक दूसरा, दो चीज एक साथ कर ले, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता, दो ऑप्शन हाथ में रख। नेक्स्ट, या सो रेडमी ओनली CFA इज बेनिफिशियल, 6 लाख का पैकेज मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी थोड़े फाइनेंस में इश्यूज है, थोड़े अभी थोड़े, ठीक है, तो 6 लाख की जगह पे शायद 4 लाख का मिलेगा, आई एम टेलिंग यू ब्लंटली, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, और कुछ इश्यू नहीं है, राइट। हाउएवर सो दैट इज व्हाई आई स्टिल थिंक जो एज ऑफ नाउ जो बिल्कुल श्योर शॉट है कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, वो है CA, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा। MBA मतलब थोड़ा डिसेंट कॉलेज होना चाहिए, ये 2 डिग्री प्लस बैंक PO, श्योर शॉट है कुछ ना कुछ मिलेगा, नेक्स्ट 3 से 4 साल वही तो तकलीफ है ना, उसके बाद में तकलीफ थोड़ी होगी, कुछ ना कुछ मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस बिटवीन फुल टाइम MBA एंड पार्ट टाइम MBA, विच इज बेस्ट? अभिषेक बुडकर फुल टाइम MBA, नो डिस्कशन, आई एम नॉट डिस्कसिंग इट। पार्ट टाइम MBA प्लीज भूल जाओ उसको, तू कैसे बताऊं मैं यार। हाउ डू यू कंपेयर मोहम्मद कैफ वर्सेस सचिन तेंदुलकर? मतलब इट इज नॉट कि मैं मोहम्मद कैफ भी अच्छा था, लेकिन कैन यू कंपेयर दिस टू? यू कैन नॉट, राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। तुम नहीं सर, मोहम्मद कैफ ज्यादा अच्छी फील्डिंग करता था, ठीक है, ऐसे तो तू मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, हाउ डू यू कंपेयर यस अनिल अंबानी, ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, वर्सेस मुकेश अंबानी। इनफैक्ट दिस इज अ मैग्निफिसेंट एग्जांपल रिलेटेड टू एग्जैक्टली व्हाट यू हैव आस्क्ड, आई जस्ट रियलाइज्ड। सो दिस इज पार्ट टाइम MBA, दिस इज फुल टाइम MBA, खत्म। सो आई होप यहाँ पे तेरा डाउट खत्म होना चाहिए। नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स? दैट्स इट, कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट, आई थिंक MIT और Symbiosis क्या पता नहीं, Symbiosis कॉलेजेस आर गुड फॉर MBA, MIT थोड़ा मैं कम प्रीफर करूंगा, सिम्बी इज गुड, सिम्बी अभी मैंने नाम लिखा ना, SIIB सब अच्छे, SIBM बैंगलोर, पर वो बैंगलोर में है, देन SCM HRD भी अच्छा है, बट यहाँ मतलब बिकॉज यू आर स्पेसिफिक ऑन फाइनेंस, MIT आई विल लास्ट ऑप्शन रखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। Yes, anything else guys? Nine, worth, या am I worth doing MBA? मतलब सी, अगर अभी तू ये है कि यार किसी एकदम ही रद्दी कॉलेज में जाएगा MBA करने, तो मैं तब भी मैं बोलूंगा बकवास है। सो एक जैसे ओके, अभी पूछ ही लिया तो फटाफट बता देता हूँ, आई शुडंट टेक मच टाइम टू रीच हियर, यस ये रहा यार, इनमें से कोई भी मिला तो चलेगा यार, अरे छोड़, ये नहीं, ये तो अच्छे हैं, इनके नीचे का भी पूरा एक ग्रेड ऐसा चलेगा। मतलब देखो ना, यहाँ पे चेतना का नाम नहीं है, MET का नाम नहीं है, ये जो कॉलेज यहाँ पे मेंशन नहीं है, मतलब वहां से भी आपको 5 से 6 लाख का पैकेज मिलता है यार, वो भी ये टाइम पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देयर इज वन थिंग व्हिच माय स्टाफ हैज आस्क्ड मी, माय वन ऑफ माय फैकल्टी हैज आस्क्ड मी इनफैक्ट, कि देखो ये साल अब भी नोटिफिकेशन आया है 3-4 दिन पहले कि विदाउट विदाउट कैट स्कोर, बट दैट इज ओनली फॉर दिस ईयर, ये साल के एडमिशन, अब भी जो एडमिशन चल रहे हैं, राइट, विदाउट कैट स्कोर आल्सो यू कैन टेक एडमिशन, अब भी अगर एडमिशन लेना तो आपको MBA में, लेकिन अब भी आपका ग्रेजुएशन खत्म होना चाहिए, तब आप कर सकते हो, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस नाउ। ट्विंकल टन्ना, आफ्टर गेटिंग बैंक जॉब इज इट कंपलसरी टू डू पोस्ट ग्रेजुएशन? नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आफ्टर आप बैंक जॉब में हो, बैंक के अलग से एग्जाम होते हैं,
So once you are already working in a bank, for bank employees के लिए अलग से उनके एग्जाम होते हैं, इंटरनल एग्जाम होते हैं, राइट? तो somebody asked me कि सर बैंक में अब मेरे को जॉब मिल गया, फिर क्या मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन करना कंपलसरी? नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। बैंक टू बैंक, उसी बैंक में अगर आपको आगे बढ़ना है, किसी दूसरे बैंक में, उसी लेवल के बैंक में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो बैंक के खुद के एग्जाम्स होते हैं ओनली फॉर बैंक पीपल हु आर वर्किंग फॉर इन द बैंक, ठीक है? जेआई भी बोलते हैं उसको, राइट? सो कोई जरूरी कंपलसरी नहीं है, ठीक है? स्टार्टअप ग्रांट्स बाय गवर्नमेंट, ठीक है, मैं बना दूंगा वीडियो, कुछ मिलना नहीं है बस, ठीक है? I hope you understood. Okay. Anyways, now that's it, guys. So I would like to call it a day. I hope you enjoyed and learned something out of it. Get in touch with our team members. My team member will send WhatsApp पे कुछ चीजें आपको भेज देंगे अभी ग्रुप पे. Save our numbers if you want. I've already written these numbers here. You can save these numbers. Contact them whenever you have any kind of doubt. And वैसे तो नंबर सब में लिखा है, ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, so you can get in touch with any of these people. They'll definitely help you. ठीक है? It's see, yeah, it's there. These are the numbers. We'll share these numbers. वो group में है, whatever WhatsApp group is there, they are there, so you can contact them. That's it, guys. Bye. Thank you. Yes, please. That's it. Yeah, presentation also will share. What's the problem in sharing the presentation? अभी भेज दूंगा मैं, ठीक है? मुझे पता तू क्या करने वाला है, मेरा लोगो सब उड़ा देगा, उसके बाद में खुद यूज करेगा किधर, तो कर यार, क्या फर्क पड़ता है? इफ यू कैन हेल्प अदर पीपल विद योर नॉलेज, नथिंग लाइक इट। अरे नहीं, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई एम चिल्ड आउट, डोंट वरी। चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।